I hope I am clear to everyone. Good evening, everyone. Is this okay? Yes, madam, you're audible. Yes, thank you, doctors. Let's begin with the session now. Good evening, everyone. A very warm welcome to all the respected doctors who have joined today, and a warm welcome for joining today's master training program in Garbha Sanskar. It is a 30 online training program, and today is the first day. से लर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं जो सिर्फ नॉलेज की क्लिनिकल प्रैक्टिस को भी नेक्स्ट लेवल जाएगी। इस कोर्स में आपको 30+ नॉट 30+, 60+ आवर्स ऑफ लाइव ट्रेनिंग होगा। 2 आवर्स डेली सेशन होंगे from Monday to Friday, ready to use protocols, how to do the consultation templates, patient education PDFs, right? And practice building strategies and complete implementation blueprint आपको मिलेगा। गर्भ संस्कार कैसे इंप्लीमेंट करना है आपको आपके प्रैक्टिस में, ओके, वो सब आपको मिलने वाला है। यानी दिस कोर्स कंप्लीट होते ही आप कॉन्फिडेंटली अपनी क्लिनिक में गर्भ संस्कार प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो और कॉन्फिडेंटली खुद का गर्भ संस्कार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकते हो। सो और इस वंडरफुल प्रोग्राम को डिजाइन किया है डॉक्टर भूषण काळे सर ने। IIAS is the organizer for this course. Dr. Bhushan Kale sir, let me introduce him. He is the speaker he is a mentor for this wonderful program. So Dr. Kale sir is a BMS, MS in Prasuti and Sri Rog and also a PhD scholar. Along with the specialization in Ayurveda, obstetrics and gynecology, he has also completed different certification in clinical embryology, OBYG ultrasound, sports science, yoga protocols, structural integration, and several advanced therapeutic techniques. Sir is the founder of Ayubhushan Ayurveda. Many times in the WhatsApp group also I have shared his Instagram page. I hope you have gone through. If not, we'll share it again. He has represented Ayurveda on national as well as international platforms. He has recognized with prestigious International Excellence Award in Rome, Italy, along with multiple Best Research Papers and Best Research Poster Presentation Awards at national and international conferences. His research on PCOS, infertility, antenatal care, and labor through Ayurveda reflects his deep clinical expertise and passion for evidence based Ayurvedic practice. With years of clinical practice and clinical experience, along with his researches, Sir has developed a practical and result oriented Garbha Sanskar model that has helped many doctors successfully implement this service in their own practice. This course is proudly organized by IIAS with the vision of empowering the doctors through authentic knowledge, practical tools, and a proven system. So it is a ready to use, a highly what you can say, a highly tested, okay, proven system will be produced in front of you in this next 30 days. So get ready to learn, interact, implement, and transform your practice over next 30 days. Once again, welcome to day one. Let's begin this beautiful journey of Garbha Sanskar together. Thank you very much. I will request the participants to wish in the chat box. Dr. Bhushan Kale sir, will you just share your screen? Good evening, sir. Yes, madam. Am I audible? Yes, sir. Very clear, sir. Yeah.
So just in a while, I'm opening my slide. Is it visible, ma'am? ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके, डन। सो यूजुअली, क्योंकि हम गर्भ संस्कार एज अ ट्रेनर डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 30 दिनों में, जिसमें से हमारा ये पहला डे है, तो हम यूजुअली इस सेशंस को हमेशा इंटरेक्टिव रखेंगे। क्योंकि आज का सेशन इंट्रोडक्टरी है, बहुत से ऐसे लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अभी इस 30 दिन के जर्नी का पार्ट नहीं है, किंतु जिनको गर्भ संस्कार इस विषय में इंटरेस्ट है, रुचि है, उनके लिए भी हम आज का सेशन एक ओपन सेशन कि हम आने वाले 30 दिनों में क्या क्या सीखने वाले हैं। और एक गर्भ संस्कार अगर आपको लेना भी है, तो ये आज के सीरीज के बाद कल भी आप अपने पेशेंट्स के लिए, अपने जो भी क्लिनिक में प्रैक्टिस में गर्भ संस्कार में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक इंट्रोडक्टरी सेशन आप ले पाओ, इस हिसाब से आज के स्लाइड्स डिजाइन किए हैं। जो भी हमारे साथ ऑलरेडी इस 30 दिन की जर्नी में जुड़े हुए हैं, उनको इससे और डिटेल में, इसके और हर एक टॉपिक पे हम डिटेल में जाने वाले हैं। किंतु अगर किसी कारणवश इस 30 दिनों में आप में से बहुत से लोग जो नहीं जुड़ पा रहे, उन्हें भी कुछ इसमें से सीखने को मिले, इसमें से कुछ यूजफुल हो, इस हिसाब से हमने आज के स्लाइड्स डिजाइन किए हैं। तो मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि गर्भोत्सव जब मैंने ये पेशेंट के सामने रखना होता है, तो आज का टॉपिक जो भी रजिस्टर्ड डेलीगेट्स है वो थोड़ा सा याद रखिए कि आज का जो टॉपिक है वो इस हिसाब से है कि आप लोग अपने पेशेंट्स को इसके बाद इमिजिएटली ले सको। ओके, और इसमें से जो रेडीमेड स्लाइड है उसको यूज कर सको, इस हिसाब से आज के स्लाइड से ये ध्यान में रखिए। हमारा एक्चुअल सेशन जो आपके लिए प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहेगा, आपको जो आपको समझने के लिए, सीखने के लिए रहेगा, टू वे, वो हम कल से उसमें डीप डाइव करते जाएंगे। तो इसमें, इसको हमने, जब भी हम एक सीरीज लेते हैं, सेशन लेते हैं, तो मैं अपने टास्क में वो लूंगा आपको कि आपको आपके सेशंस को, आपके सीरीज को कुछ ना कुछ नाम देना है। जैसे कि मैं हमेशा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं नाम देता हूं इसको गर्भोत्सव करके। क्योंकि गर्भ यानी हम सब जानते हैं बच्चा, और उत्सव यानी एक सेलिब्रेशन, तो बहुत इजीली महाराष्ट्र में अटैच हो जाता है ये। तो इस हिसाब से हमने उसका नामकरण दिया हुआ है गर्भोत्सव। तो हम कुछ भी दे सकते हैं इसमें, अपने कोर्स को नाम। तो गर्भ उत्सव अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोर्स जैसे दिखता है, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंटरेक्शन जैसे होता है, इसलिए उसका नाम गर्भोत्सव दिया है। क्योंकि एवरी डे इज ए सेलिब्रेशन, एवरी डे इज ए सेलिब्रेशन, इस हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी को कोई एड्रेस नहीं करता, कोई उनसे डिस्कस नहीं करता। तो हम जब उसको बताते हैं कि आपका हर दिन एक सेलिब्रेशन है, तो अपने आप एक सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्शन यहीं से एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। तो बाकी के जो गर्भ संस्कार के एलिमेंट्स है, तो उसको इस लोगों में ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया हुआ है, दिखाने की कोशिश की है। तो गर्भोत्सव करके जब हम जनरल पब्लिक के लिए लेते हैं, तो याद रखिए आज का जो सेशन है दैट इज टोटली कि आप अपना इंट्रोडक्टरी गर्भ सेशन, गर्भ संस्कार का सेशन कैसे लेंगे। जो रजिस्टर्ड डेलीगेट है वो स्पेसिफिकली समझिए इसको, ठीक है। तो नाउ मैंने जैसे बताया कि हम अभी सेशन इंटरेक्टिव करते हैं। ओके, तो अभी क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है?
फटाफट आंसर डालिए। डायमंड। ओके, चार्ट भी कर सकते हैं, जिनको अनम्यूट करके नहीं करना है वो चार्ट भी कर सकते हैं। Unmute. Yes, unmute and please answer soon, okay? So that we can keep ओके, it सॉइल दिख रहा going. है, मिट्टी दिख रहा है, डायमंड दिख रहा है। और डायमंड क्या इन है? Charcoal in between diamond, Fine. it is there, sir. डायमंड इन चारकोल, डायमंड इन सॉइल, डायमंड डायमंड चारकोल, कोयला में हीरा है, ब्लैक इन कोल। डॉक्टर अर्चना रॉय, डायमंड, राइट। रेत से हीरा खोजना, ओके। इसमें कॉमन क्या है? डू यू नो व्हाट इज कॉमन थिंग? Same compound, different form. यस। सो चारकोल और डायमंड दोनों का भी कंपाउंड सेम है, राइट। आते वो एक ही जगह से होते हैं, कार्बन से ही बनते हैं दोनों भी, आते एक ही जगह से है। लेकिन जब हीरे पे रिपीटेड प्रोसेसिंग होता है उस पे, जिसको हम सही मायने में संस्कार बोलते हैं, ओके, रिपीटेड, उसको बहुत सारे घाव सहने पड़ते हैं, राइट। उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर, उसका उसके ऊपर बहुत सारा अटैक होता है एक तरीके से। तब जाके वो कोयले से हीरे का जो निर्माण है वो होता है। तो इसी हिसाब से हम जब एक मदर को पूछते हैं कि क्या है प्रेगनेंसी, सो प्रेगनेंसी इट सेल्फ इज अ पावर। इसमें एक पावर है। क्या पावर है? कि जो हीरा भी पैदा कर सकता है या कोयला भी पैदा कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसका अप्रोच कैसा है। क्योंकि आज के डेट में अगर हम जब जेंजी की तरफ देखते हैं तो समझ में आता है इसकी अहमियत क्या है। Okay, so being a mama is rewarding for so many reasons, but the best one is knowing that all the hard and crazy days will be worth every ounce of who they turn to be. Okay, कि बच्चा कैसा बनेगा, इसका पूरा का पूरा जो पावर है प्रेगनेंसी का, हीरा बनाना या कोयला बनाना, ये टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेगनेंसी का ये जो पीरियड है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए जब भी हम इंट्रोडक्टरी क्लास लेते हैं, इसको हर एक इसको और आगे जाते जाते हम और बहुत डिटेल डीप डाइव करते जाएंगे। पर जैसे मैंने कहा कि आज हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन में हैं। अभी ये सेशन जो है हम बहुत बार ऑनलाइन लेते हैं, बहुत बार ऑफलाइन लेते हैं। एज अ डॉक्टर जब आप अपने पेशेंट्स को लेंगे तब हम क्या करते हैं, बहुत बार ऑनलाइन ऑफलाइन या हाइब्रिड भी रखते हैं। जैसे कि आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं तो हमारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि आप वीडियोस ऑन रखो, आप अपना साउंड सिस्टम अच्छे से रखो, आप अपने पास नोट्स पेन डायरी लेके बैठो, ओके, अटेंटिव रहो, इंटरेक्टिव रहो अपने साथ। ये तो जो गाइडलाइंस हम बताते हैं वो किसके लिए, कि सेशन कैसे अटेंड करना है। लेकिन सेशन अटेंड कौन कर रहा है? प्रेग्नेंट लेडी अटेंड कर रही है। हमेशा हम ये ध्यान में रखने की चीज होती है कि ऐसी जब भी वो ऑफलाइन को भी आते हैं आपके यहाँ पे, अगर आप बुलाते हो तभी भी ये चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है कि आपके पास पानी होना चाहिए, पानी की बोतल लेके बैठे, आपके पास खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह आप लेके बैठे, कुछ जूस वगैरह लगता है तो वो लेके बैठे। और क्योंकि सेशन हमारे लंबे चलते हैं, दे हैव टू सिट कंटिन्यूअसली, शी शुड सिट ऑन द कंफर्टेबल प्लेस। अभी इसके साथ साथ घर में कोई केयर टेकर है तो शी कैन एडवाइस सीजनल थिंग्स आल्सो, ओके। तो उनको ब्रेक देना, वॉशरूम के ब्रेक्स देना, उनको हाइड्रेशन मेंटेन करना, कोकोनट वाटर हो, जूस हो, ये लड्डूज हो, फ्रूट्स हो, इनका हम प्रीवियसली ही इंस्ट्रक्शन दे के रखना। क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेंशन जैसी जो चीज होती है वो ट्राइमेस्टर वाइज चेंज होती रहती है, ओके। तो इसका ध्यान रखते हुए उनको इंस्ट्रक्शंस देना। मैंने जैसे बोला कि हम इसको और क्या क्या डीप, बहुत डीप इंस्ट्रक्शंस क्या क्या देते हैं ट्राइमेस्टर वाइज, वो भी हम आगे देखने ही वाले, ओके। तो जब हम ऑनलाइन लेते हैं तो दो तरह के ग्रुप होते हैं। बहुत बार गर्भ संस्कार का जब हम सेशन लेते हैं तो एक स्लाइड्स हम हमेशा दिखाते हैं कि आप कौन से जोन में हैं, राइट। तो अभी ये सिर्फ यहाँ पे इनका कमेंट लेते हैं, ओके। जैसे कि कल मैं आपका एक ग्रुप का पोल लूंगा कि कितने लोग नॉन मेडिको, सॉरी, कितने लोग
BMS है, कितने लोगों ने PG किया हुआ है, कितने लोग गायनेक के पीजे है, सो दैट आई विल कम टू गेट एन आइडिया कि मुझे ग्रुप को किस तरह से हैंडल करना है। तो आपको भी यहाँ पे जब प्लानिंग और प्रेग्नेंट दो फेज के होते हैं, हम क्या पकड़ के चलते हैं हमेशा कि ऑनलाइन स्पेसिफिकली सेशंस में बहुत लोग आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं। जैसे कि आप में से बहुत लोग आज आए हैं कि आगे आने वाले 30 दिन में क्या सीखने वाले हैं, इसको टेस्ट करेंगे ना। तो आज का इसलिए मैंने सेशन रखा है, ऐसे रखा है, डिजाइन किया है कि आप ट्रेनर हो गए हो ऑलरेडी। तो हाउ यू विल ट्रेन योर क्लाइंट्स, हाउ यू ट्रेन योर पेशेंट्स, उस हिसाब से कि यहाँ पे आप इनको इंटरेक्टिव सेशन का, ये हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे हम कमेंट लेते हैं कि वो प्लानिंग जोन में है या प्रेग्नेंट जोन में है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा दो चीज होता है, एक कम्युनिकेशन कैसे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन इज प्लानिंग जोन एंड हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन इज इन प्रेगनेंसी जोन। ओके, क्योंकि प्लानिंग जोन में है तो उनको हम बीजे संस्कार से शुरुआत करते हैं। बीजे संस्कार का एक ऐसा एस्पेक्ट हम कल देखेंगे, कल और परसों 3 दिन देखेंगे बीजे संस्कार। ओके, बहुत बार हमें लगता है कि बीजे संस्कार यानी सिर्फ पंचकर्म कर दिया तो बीजे संस्कार हो गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज बीजे संस्कार या प्री कंसेप्शनल केयर मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, फिर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, और फिर उसका प्रोटोकॉल हम क्या डिजाइन कर सकते हैं, हम आने वाले 3 दिनों में कल देखेंगे। इसलिए उसको जो देखना है और देखने के बाद जो एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूशन में ये हम सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज, आर यू इन प्लानिंग जोन और यू आर ऑलरेडी इन अ प्रेगनेंसी जोन। ओके, तो उसके बाद यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, क्योंकि अप्रिसिएशन सभी को अच्छा लगता है हमेशा। ओके, और प्रेगनेंसी में यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स, वन इज ऑलवेज अप्रिशिएट हर एंड सेकेंड यू ऑलवेज सपोर्ट हर। अप्रिशिएट तो करना है लेकिन सपोर्ट, हमारे पास गर्भ संस्कार के कोर्स में जो वुमेन्स आती है, प्रेग्नेंट लेडी आते हैं, दे आर इन नीड ऑफ मेंटल सपोर्ट, क्योंकि मेंटल फ्लक्चुएशंस डॉक्टर के इतना कोई भी नहीं समझ सकता, and that is the power of this Garbha Sanskar course. Okay, so congratulations to the mummy and daddy to be. Okay, तो ये जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को लेता हूँ वैसे के वैसे सेशंस मैंने आज यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है। एक 4-5 अलग अलग तरीके के होते हैं कि जो प्रेगनेंसी के जोन में कम है तो बीजे संस्कार वाला थोड़ा पार्ट ज्यादा डालना है, प्रेगनेंसी वाले ज्यादा है तो बीजे संस्कार वाला कम रहेगा, प्रेगनेंसी वाला ज्यादा रहेगा, जैसे कि आज हम ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ओके, सो द वुमन्स वोम इज द होलिएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, व्हेन यू नो एंड एक्सेप्ट इट देन यू वेलकम अ डिवाइन सोल। हमेशा याद रखिए, हम बाहर आने के बाद, बाहरी दुनिया में आने के बाद हमारा एक होता है कि कोहम कोहम, हम जब पैदा होते हैं उसके बाद हमारा सवाल हमें मन में हमेशा होता है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है, इसीलिए हम सारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स वगैरह वगैरह करते हैं। लेकिन जब बेबी बर्थ होने से पहले माँ के वोम में होता है तो वो बोलता है सोहम सोहम। ओके, तो हमेशा ये हमारी जो भागा दौड़ी है ये बर्थ के बाद वाली है, लेकिन बर्थ के अंदर, मदर के वूम के अंदर, बर्थ से पहले ये जो बेबी बढ़ रहा है तो वो हमेशा को बोलता रहता है कि सोहम सोहम। तो इसके लिए ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसको एक ये जो डिवाइन सोल है एक होलिस्टिक प्लेस में है। मदर्स का, वुमेन्स का जो वूम होता है वो एक होलिस्टिक प्लेस है अर्थ के ऊपर, तो इस हिसाब से हम कभी उसकी तरफ देखते नहीं। तो स्पेसिफिकली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, रिपीटेड एबॉर्शंस करवाते हैं, उनको भी ये चीज उस हिसाब से हमें कन्वे करनी होती है बीजे संस्कार में कि दैट इज वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ये जो माँ का जो गर्भाशय है, बच्चेदानी है, तो उसका देखने का नजरिया, उसको अपने बच्चे को फील करने का एक जो एक्सेप्ट करने का एक लेवल होता है, दैट बिकम्स वेरी मच डिफरेंट। ओके, सो ये पूरा सेशन देखते वक्त कंटिन्यूस एक बात ध्यान में रखिए कि दिस इज द सेशन यू आर टेकिंग फॉर योर पेशेंट्स। ओके, सो बहुत सारे सवाल होते हैं। आई गेस थोड़ा एनिमेशन में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये सारे एनिमेशन एनिमेटेड वीडियोस है। आई थिंक इट इज नॉट प्लेइंग। ओके, एनिमेशन प्ले हो रहा है क्या कोई एक, अदरवाइज Yes, आई, sir. Yes, sir. ओके ओके ठीक है। सो AV प्रेजेंटेशंस हमेशा प्रेफर करना है, आप ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि इंटरेक्टिव हो जाता है एंड ब्रेन कंटिन्यूअस वर्किंग मोड में रहता है। ओके,
So that is why we usually place these kind of images. Okay, so बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे मन में डर होता है, बहुत सारे सजेशंस लोगों के होते हैं प्रेगनेंसी में, स्पेसिफिकली जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तब। और इसके साथ साथ उसके नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या करना है, नॉर्मल डिलीवरी को क्या मैं कोप अप कर पाऊंगी, वो होने के बाद क्या मैं बच्चे को संभाल पाऊंगी, लैक्टेशन करना कैसे करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, ये जो आपके सारे सवाल है, इन सारे ही सवालों को हम स्टेप बाय स्टेप एड्रेस करते हैं गर्भ संस्कार में। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन फ्रॉम दिस स्लाइड। ओके, सो जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी मन आपके मन में डर है, जो भी आपके मन में चिंता है, जो भी आपके मन में वरीज है, और जो भी आपको सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, ऑल फ्रॉम क्वेश्चंस टू सपोर्ट, एवरी एट एवरी स्टेप वी आर देयर फॉर यू थ्रू अवर गर्भ संस्कार कोर्स। दिस इज व्हाट द मोटिव ऑफ आवर कोर्स फॉर यू। ओके, अभी ये होता है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो बहुत ओवरलोडेड होते हैं। आज के डेट में अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम निकालो और प्रेगनेंसी करके डालो, ओके, तो वेदर इट इज इंडिकेटेड और नॉट इंडिकेटेड, तो वो डालते ही रहते हैं। ओके, बीच में चाइना में एक चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया था कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो ओपिनियन नहीं दे सकता उस फील्ड का। ओके, मतलब अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आप एज अ डॉक्टर, डॉक्टर वाला कोई भी एडवाइस ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे, सोशल मीडिया पर आप जाओगे, सो दे आर टोटली ओवरलोडेड। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या करना है अभी बीच में 6 महीने पहले हमारे एरिया में, नॉट नॉट बिफोर 6 मंथ्स, अराउंड 1 और 2 इयर्स बैक, 1.5 2 साल पहले, एक हमारे यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर हो गया कि आप 3 दिन छाछ पी लो और आपका पंचकर्म हो जाएगा। एक नॉन मेडिको पर्सन ने ऐसे ही पॉपुलर करवा दिया सोशल मीडिया पे, 3 दिन में छाछ पी लो आपका पंचकर्म हो जाएगा, क्यों आप हॉस्पिटल जाके अननेसेसरी बिल डालते हो। सो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन से भरा हुआ पड़ा हुआ है सोशल मीडिया। ओके, सो ऑलरेडी शी इज ओवरलोडेड। ओके, तो यहाँ पे लर्निंग से ज्यादा अनलर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि उनके दिमाग में जो है उसको निकालना, उसको अनलर्न करना, फिर उसको रीलर्न करना, और फिर आगे की प्रोसेस उनसे करवा लेना एक्शन मोड में। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो उनको हमेशा यहाँ पे बोलना कि जो भी आपके दिमाग में है सवाल, या तो आप लिख दो या तो आप 1 to 1 डिस्कस करो। और उसके लिए गर्भ संस्कार सेशन में हम अलग से सेशन, स्पेशल सेशंस कंडक्ट करते हैं। ओके, पेशेंट्स को बात करनी होती है, हमें ऐसे नहीं लगता हम, इसीलिए आज के डेट में काउंसलर की इतनी डिमांड है, क्योंकि लोगों को बोलना है। काउंसलर को आज के डेट में आप इंस्टाग्राम में देखोगे तो समवेयर फ्रॉम 5,000 to 10,000 रुपीज कंसल्टिंग चार्जेस है, 30 मिनट्स टू 1 आवर के। सो पीपल वांट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। ओके, तो उसको चैनलाइज करना, उसको चैनलाइज कैसे करना है वो भी हम आने वाले सेशन में अलग अलग सीरीज के थ्रू देखने वाले हैं। आज के डेट के एंड में उसका एक झलक हम देखने वाले हैं। ओके, तो अगेन, one of the best and one of the greatest opportunity for a lady to adopt anything in the life. Okay, तो यहाँ पे सिर्फ गर्भ संस्कार एक अपॉर्चुनिटी बच्चे को एक अच्छी पीढ़ी को बढ़ने की या गढ़ने की नहीं होती, अपने आप को भी अच्छी तरह से बढ़ने की या अपने आप को भी अच्छी तरह से फिर से गढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी होती है हर एक लेडी के लाइफ में, और वो अपॉर्चुनिटी होती है प्रेगनेंसी। And that can be achieved very well with the Garbha Sanskar. That is why a movement in my tummy, a lifetime in my heart. Okay, जो भी उस समय में, जो दवरुद हम बोलते हैं ना कि 2 हार्ट्स होते हैं, तो उस समय में जो भी हम उसको ये करते हैं, उसके इसमें डालते हैं ब्रेन में, इसीलिए ये इमेज बहुत मीनिंगफुल है कि वो क्या कंज्यूम कर रही है। मेरा नॉर्वे का एक पेशेंट थी मेरे पास गर्भ संस्कार को, सो शी यूज टू वॉच क्राइम पेट्रोल डेली। ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, उनको वो ये नहीं लगता, वो उनको अप्रोच उनका आईटी में है तो उनको वो सारा थिंग नॉर्मल ही लगता है। ओके, सो इसलिए ये क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए ये है कि दिस इज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट टाइम टू अडॉप्ट एनीथिंग इन द लाइफ। तो इसलिए उनको क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर देयर बेबी बट फॉर यू एज वेल, दैट कैन बी
वेरी वेल अचीव्ड थ्रू द गर्भ संस्कार। अभी ये एक इमेज उनके दिमाग में ठोसना बहुत जरूरी होता है, अगेन लिंक्ड टू सोशल मीडिया। क्योंकि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, ओके, तो उसके साथ यूजर मैनुअल आता है। आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, एनीथिंग यू परचेस, ओके, यू गेट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल या यूजर यूजर मैनुअल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में हम जब इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कोई भी यूजर मैनुअल नहीं आता। लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज ये है कि हम यहाँ पे उनको ये यूजर मैनुअल बना के दे सकते हैं। आज के डेट में देर आर वेरियस ऑप्शंस एज अ गर्भ संस्कार कंसल्टेंट यू कैन डू, ओके। तो ये मैनुअल भी आप अलग अलग चीजें बना के दे सकते हैं, जिसको हम रेडीमेड, बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको आने वाले इन 30 दिनों में देंगे कि कौन से मैनुअल्स आप अपने पेशेंट को दे सकते हो, रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू योगा, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। सो विच वी आर गोइंग टू take care of during these 30 days. Yeah, we are going to create it in these 30 days. तो ये एक स्लाइड मैं हमेशा डालता हूँ जब भी मेरा घर, ये मराठी में है, बहुत सारे लोगों को शायद पढ़ने को नहीं आएगा। क्योंकि एक सानी गुरुजी करके एक हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ी व्यक्ति है, कि उन्होंने एक पोएम लिखा है कि आई माझा गुरु, आई कल्पतरू, सुखा सौख्याचा सागरू, आई माझी, प्रीतीचे माहेर, शांतीचे आगर, मांगल्याचे सार, आई माझी। ये बहुत अच्छे से मदर को कनेक्ट कर पाता है, ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी हम बोलते हैं कि आपको कौन से टीचर पसंद है, आपको स्कूल की कौन से डेज डेज याद आते हैं, कौन से टीचर फेवरेट थे, ओके, तो वन ऑफ द फेवरेट टीचर या वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड इज द मदर, ओके। सो आई ऑलवेज से दिस वन थिंग कि ये सेशंस में कि आपका घर आपका पहला स्कूल है और आपकी मदर आपकी पहली टीचर है। ये हमेशा गर्भ संस्कार का आपका एक टैगलाइन जैसे आप इसको यूज करना है। तो वो मदर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस घर को स्कूल के जैसे, स्कूल में जैसे उसको पढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, उस हिसाब से रखे, और उसको एज अ टीचर वाली जो फीलिंग है सबकॉन्शियसली जो हमें डालना है, वो वाला फील हम यहाँ पे देते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम क्यों हैं आज, हमें गर्भ संस्कार क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रिलेवेंस नेक्स्ट जनरेशन में कैसे आता है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी, कुछ एक्टिविटीज, रिजल्ट या आउटकम कैसे होगा, और एक्शन प्लान क्या होगा, ओके। सो ऑल दीज आर फॉर इंट्रोडक्शन टू द गर्भ संस्कार, ओके। अभी यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें याद रखना है कि आज के डेट में डू यू नो हाउ मेनी बेबीज बोर्न ईच डे इन इंडिया, ओके। अभी ये भी 3 साल पहले का है, ओके। सो जहां पे मैंने सर्कल किया हुआ है लास्ट में, यहाँ पे अगर आप पॉइंट आउट कर पाते हो, एक छोटा सा जो स्काई ब्लू कलर का सर्कल है, तो 79,726 लाइव बर्थ एवरेज पर डे, ओके, which around 3,321 in an hour। अभी इसमें 20,945 deaths average per day, okay। So again this is the area where we can work magically with the Garbha Sanskar। Next, 1,602 इमिग्रेंट्स एवरेज पर डे, मतलब ये अभी सेंसस का पॉपुलेशन है यहाँ, तो यहाँ इसने इमिग्रेशन का भी बताया है। लेकिन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी इंक्रीजिंग बाय 49,179 पर्सन्स डेली इन 2023 का सेंसस है, ओके। तो उस हिसाब से यहाँ पे बताया है। सॉरी। सो प्रेग्नेंट इन द वर्ल्ड एट अ टाइम, अभी ये तो इंडिया का हो गया। सो अराउंड 34 करोड़, उसमें से 3,85,000 बर्ड्स पर डे वर्ल्ड में होते हैं। अभी यहाँ पे जो गौर करने की चीज है वो ये है कि 40 to 50% आर हेल्दी, उसमें से 8% ही जीनियस होते हैं, जो कि स्टैनफोर्ड का जो टेस्ट है क्योंकि उसके हिसाब से जो जीनियस बच्चे होते हैं, ओके, सो वो 8% होते हैं, और उसमें से सिर्फ 1% बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स, ओके। सॉरी बिकॉज ये थोड़ा इमेज ओवरलैप हो रहा है सेंटेंस पे, लेकिन यू कैन इजीली रीड आउट, ओके। सो
34 करोड़ प्रेगनेंसी में से इतने डिलीवरी होके सिर्फ 40 to 50% हेल्दी होते हैं। फर्स्ट एरिया जहां पे हम काम कर सकते हैं, 8% ओनली जीनियस, और सिर्फ 1% चाइल्ड बिकम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स। ओके, अभी 79,726 पर डे, इसमें से इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल, आइडियल, हेल्दी, प्रॉमिसिंग, ऑनेस्ट, रिलायबल, सेल्फ डिसिप्लिन, एम्बिशियस, कंपैशनेट, लॉयल, ये जो बच्चे होते हैं वो कितने होते हैं? ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं ये स्लाइड ओपन करता हूँ सवाल से। यहाँ पे मैंने एनिमेशन मिस कर दिया है। ओके, कि अगर आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से, तो अ, ये अलग अलग लोग हैं। ओके, तो ये अलग अलग लोगों का ये अलग अलग आईक्यू है। ओके, आई गेस थोड़ा इमेज में ये हो गया है, ठीक है। सो विलियम जेम्स, सर इसाक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इलॉन मस्क। ओके, तो वी नो ऑल ऑफ दीज पीपल। ओके, तो इनका आईक्यू लेवल कैसा है, किस हिसाब से है, ये क्यों हो गया होगा, इसके ऊपर विचार करने वाली चीज है। ओके, अभी इसको थोड़ा सा इंडिया में अगर हम लेके आते हैं तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स क्या है? ओके, सो जो अर्जुन अवार्ड से लेके जो अलग अलग है, ओके, तो इट इज वन ऑफ द नेशनल ऑनर इन स्पोर्ट्स। ओके, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ओके, कि पद्म भूषण है। सो हाईएस्ट पीस टाइम गारंटी अवार्ड, ये जो अलग अलग है, ओके, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री है, भारत रत्न है, ये अलग अलग अवार्ड्स है। तो ऑल दिस आर स्टार्टिंग फ्रॉम जो भी परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, अशोक चक्र है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, अर्जुन अवार्ड है, पद्म भूषण है, वीर चक्र है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी ये जो कुछ लोग आपके स्लाइड्स पे दिख रहे हैं, स्लाइड्स मूव हो रहा है ना? थोड़ा अगर यस करके डालिए सिर्फ। Yes, sir. ओके, डन, थैंक यू। सो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ओके, सो दीज आर सम ऑफ द अचीवर्स ऑफ दीज अवार्ड्स। ओके, सो दीज पीपल हैव ऑलरेडी अचीव्ड दीज अवार्ड्स। ओके, so for this what we ask to our patients whenever these pregnant group we see, okay, so हम हमेशा क्या पूछते हैं कि क्या पूछोगे आप इस सवाल, इस स्लाइड से आप क्या सवाल पूछोगे? This is in English. You have to take in the regional language. What question you expect from this slide? Do you also want your child to be in that like that or ओके, सो ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू, ओके, दो स्लाइड पीछे मैंने जब यहाँ पे बताया कि आई ओपन दिस स्लाइड विद द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट क्वालिटीज। डॉक्टर मंजूषा, कोई आपका शायद मोबाइल से आपने ज्वाइन किया है, यू आर टचिंग द स्क्रीन। Sir, I was not able to view the slides. Sir. I thought I could enlarge it, पर वो करते ओके, समय गलती से ओके, हुआ। ओके, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन एंड लेट मी रीशेयर द स्क्रीन बिकॉज हाँ, वो इट पढ़ नहीं पा हैपेंस। रहे थे, इसलिए मुझे लगा एनलार्ज हो जाएगा, इसलिए No, टच no, किया था। okay, 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 done. I have हाँ। stopped and reshared. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So we open up this slide. We open up this slide with the question. Okay. And we take the continuation of this slide कि जो भी हमने विश किया है, ओके, जो भी हमारा विश चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, सो ऑलवेज वी हैव द, ओके, डॉक्टर हर्षिता, आई गेस नाउ यू हैव ज्वाइंड फ्रॉम द मोबाइल। So you just don't touch anyone if joining from mobile. Please don't touch the screen. आप स्क्रीन पे टच करोगे तो यहाँ पे स्क्रैचेस आएंगे। ओके, so there are three C's. Okay, one is choice, one is chance, one is change. Okay, so you must make a choice to take a chance or your life will never change. Okay, अगर आपको लाइफ में चेंज करना है कुछ, तो you have to always take a choice and किसका चॉइस करना है, तो चांस लेना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली यू कैन चेंज द थिंग। ओके, इफ यू डोंट टेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस टू टेक अ चांस ऑफ गेटिंग अप अर्ली, ओके, so you will not lose your weight in the whole life. In that way, if you want to make a choice, okay, to take a chance to get a healthy baby, an intelligent baby,
okay, then you have to act on these three things, okay, चॉइसेस, चांसेस एंड चेंज। ओके, तो ये उनको यहाँ पे बताना है कि क्यों करना है। अगेन दिस आई आई यूजुअली टेक दिस एज अ एनिमेटेड स्लाइड कि एक के बाद एक के बाद एक हम दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसको हमें कल सेकेंड या थर्ड सेशन में बहुत अच्छे से ओपन अप करूंगा कि व्हाट इज द पर्पस। ओके, लेकिन देयर शुड बी अ पर्पस ऑलवेज। ओके, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि मैं विश स्लाइड के क्वेश्चन से हमें ओपन करना है कि व्हाट इज देयर विश। ओके, तो विश चाइल्ड पाने के लिए हमेशा पर्पज होना है। अभी ये जो कुछ नाम है यहाँ पे, श्री कृष्ण भगवान है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, स्वामी विवेकानंद जी है, एपीजे अब्दुल कलाम है, नरेंद्र मोदी जी है, जाकिर हुसैन जी है, सोनू निगम है। हर एक नाम के पीछे कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड स्टोरी है, कुछ ना कुछ। अभी बहुत सारे लोग डोंट टेक इट पॉलिटिकली, लेकिन बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोदी जी का नाम, तो उनकी माता जी कहती है कि जब व्हेन शी वाज कैरिंग हिम शी यूज्ड टू रीड द महाभारत। ओके, सो आज के डेट में हम उनका जो पॉलिटिकल करियर कितना उन्होंने फ्लरिश किया है। या सोनू निगम जी है, सोनू निगम जी स्टोरी में वो इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि हिज मदर यूज टू हियर लता दीदी। ओके, वो उनकी मदर जो थी वो लता दीदी के गाने सुना करती थी व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग सोनू निगम। ओके, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दीज नेम्स। तो देयर शुड बी ऑलवेज अ स्पेसिफिक पर्पस। ओके, तो पर्पस को कैसे ढूंढना है इसके ऊपर हम कल परसों काम करेंगे। ओके, हमारे कंटिन्यूएशन के सेशन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, तो ये सवाल स्टेप बाय स्टेप हमें अपने पर्पस की तरफ लेके जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सवाल मैं पूछता हूं, जैसे कि मैंने पूछा कि आर यू रेडी टू बिकम द मदर जस्ट लाइक द मदर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो ड्रॉप कमेंट आप लेंगे, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सेशन लेते हैं एंड व्हेन वी एक्सपेक्ट देम टू कंटिन्यू आवर सेशंस, सो एट दैट टाइम वी आई कंटिन्यू इन दिस वे। ओके, सो इसके आगे चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर आता है कि इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, विचार, सोच, भावना, जो भी मन, साइकोलॉजी के रिलेटेड चीजें हैं, उनका इफेक्ट कैसे होता है। ओके, तो सत्व वैशेषकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां मातृ पितृ सत्व अन्य अंतर्वर्तन्या। अंतर्वर्तन्या मीन्स यहाँ पे प्रेगनेंसी। ओके, श्रुतेश्च अभीक्ष्णम स्वोचितम कर्मसत्व विशेष अभ्यासाच इति। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो इफेक्ट क्या क्या आता है प्रेगनेंसी का। ओके, तो देर आर क्वाइट लॉट ऑफ रेफरेंसेस, उनको भी हम आने वाले हर सेशन में धीरे 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 डिकोड करते जाएंगे। तो along with that सेम हाउ मैटरनल मूड शेप्स द डेवलपिंग ब्रेन। ओके, तो ये एक है। मैं एक 2 सेकंड के लिए इसको स्टॉप करता हूं और मैं दूसरी स्लाइड रीशेयर करता हूं। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू प्ले दैट स्लाइड। ओके, बट एनीवे स्लाइड्स विजिबल है फिर से। Yes. ओके, सो health, athleticism, intelligence, illnesses, the traits that make us who we are come from the interplay between the genes we inherit and the environment we are exposed to. And those environmental effects begin even before we are born. Thanks to long running studies that ट्रैक ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम वूम टू अडल्टहुड वी नो। ओके, तो ये एक लिंक है जहां पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि हाउ मैटरनल मूड शेप्स द डेवलपिंग ब्रेन। इसको भी हम प्रिकंसेप्शनल केयर में जो भी मॉडर्न के रेफरेंसेस है उनको देखेंगे। इस जो ये स्टडी है इसको भी मैं कल दिखाऊंगा कि स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल लीड टू लो बर्थ वेट, अल्कोहल कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीड टू हार्ट डिफेक्ट्स और जॉइंट डिसऑर्डर्स। ओके, एंड बैड डाइट रेजेस द odds ऑफ चाइल्ड being obese as an adult. Okay, so but what about mother's mental health? Okay, stress, anxiety during pregnancy, it brings high risk of offspring developing ADHD, depression और अदर कंडीशंस। इसके ऊपर भी बहुत काम है, बहुत सारे मूवीज भी हुए हैं। ओके, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के, तो इनके भी कुछ कुछ हम बाइट्स देखने वाले हैं आने वाले 30 डेज में
कि कौन से जस्ट अ सेकंड। तो हाउ इट शेप्स एज अ थ्रू प्रेग्नेंट लेडी एंड हाउ इट शेप्स इन द चाइल्डहुड, उसको भी हम देखेंगे। ओके, तो इसके लिए आज के डेट में जो साइकोलॉजिकल डिसीजेस बढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। सो व्हाट आर द क्वालिटीज डू यू वांट टू सी इन योर बेबी। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन से हम, क्योंकि हम में से हो सकता है एक आध दूसरा ही प्रेग्नेंट हो, तो इसको भी हम धीरे धीरे सेशन कंडक्ट करते जाएंगे। आज का सेशन और 29th जो सेशन होगा तो उसको मैं इंटरलिंक करवाऊंगा बीच में आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के जो एक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं तो कुछ इस तरह से होते हैं। यूजुअली यहाँ पे प्लेन इमेज होता है और पीपल विल आंसर। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण है, सुदामा है। ओके, तो काम है, कूल है, अच्छे वेट वाला है। ओके, इंटेलिजेंस है, या सबसे आगे जाते एक सुपर बेबी जैसे कुछ एक्सपेक्टेड होता है। ओके, यस, टुमारो आई विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्टडीज। ओके, कल के सेशन में जो रिसर्च है, तो प्री कंसेप्शनल केयर जो हम आयुर्वेदा में बीज संस्कार के एंगल से देखते हैं, तो वहां पे बीच में अभी डॉक्टर नंदराम जी ने कलविते नंदराम काळविटे जी ने पूछा है। ओके, तो इसके जो रेफरेंसेस है, उसके जो रिसर्चेस है, वो बहुत लंबे, बहुत लॉन्ग टर्म रिसर्चेस है। एंड दोज रिसर्चेस विल बी प्रोड्यूस टुमारो। ओके, कल के सेशन में मैं इनको प्रोड्यूस भी करूंगा कि क्या क्या रिसर्चेस है, और आप उन रिसर्चेस को भी आप अपने प्रैक्टिस में, अपने सेशंस में यूज करके ही आपको प्रेजेंट करना है। कल से जो हम सीखेंगे वो खुद को पहले सीखना है, अपने पास पहले प्रूफ कलेक्ट करने हैं। आपके पास जो ये प्रेजेंटेशन सारे हमारे आएंगे उसके उसमें आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, एंड यूजिंग दोज रेफरेंसेस यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द योर पेशेंट्स कि ये क्यों है, कैसे होता है। ओके, तो इन द सेम वे, अभी ये क्या है, आप देख रहे हो एक इमेज में कि मूर्ति बन रही है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप बनते बनते एक ऐसे जो बेबी बनता है। ओके, सो इसमें मदर प्लेज बिगेस्ट रोल इन शेपिंग एंड गाइडिंग हर अनबॉर्न चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। तो दैट इज, इसके लिए बहुत सारे हम रेफरेंसेस यहाँ पे आगे देखते जाएंगे आने वाले 30 डेज में। सो रॉ मटेरियल इज बीज एंड बीज भाग। प्रोसेसिंग विल बी डन बाय गर्भिणी परिचर्या, आहार विहार, रीडिंग, लिसनिंग, वॉचिंग एंड थॉट प्रोसेस एंड फिनिशिंग। ओके, अल्टीमेटली सो गर्भ संस्कार में हम मराठी में ये बोलते हैं कि अच्छे जो क्वालिटीज है उनको मल्टीप्लाई करना, और जो बुरे क्वालिटीज है उनको डिवाइड करना। दिस इज, आय आय टेल, गर्भ संस्कार म्हणजे काय, गुणांचा गुणाकार आणि दोषांचा भागाकार. सो दिस बिकम्स अ राइम, पोएटिक राइम इन मराठी. ओके, and it is very much easily understandable. So again, the Vedas says Matrudevo Bhava. Okay, river your mother as God. Okay, so यहाँ पे जो वेदों का उल्लेख आया है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो भी रामायण है, महाभारत है, इनका अगर हम देखेंगे, या चरक सुश्रुत वाग्भट जी है, या सबसे ज्यादा जो हम गर्भ संस्कार के संबंध में रेफरेंसेस आते हैं वो गृह्य सूत्र से आते हैं। तो उसका जो भी हम एक कलेक्टिव क्यूमुलेटिव कलेक्शन जो है, उसको हम यहाँ पे 30 दिनों में स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, डिकोड करते जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है ना, वो दो तरीके का एक एस्पेक्ट होता है कि प्रेगनेंसी रहने तक क्या है, और प्रेगनेंसी में एक चीज आती है कि प्रेग्नेंट लेडी ने प्रेगनेंसी में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना पीना आचार विचार करना चाहिए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आता है, ओके, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको कुछ मटेरियल या बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं मिलता क्लासिक्स में। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो वेद है, जो शास्त्र है, स्पेसिफिकली जो आयुर्वेद है, वो जो भी मानसिक एस्पेक्ट है, ओके, उस मानसिक एस्पेक्ट को, उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को योग शास्त्र का भाग समझता है। और योग शास्त्र में आपको ये सारी चीजें करनी है। अब जब हम योग शास्त्र का अभ्यास देखते हैं, तो यहाँ पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चीजें आती है। तो यम में जब जाएंगे शौच, संतोष, तब ये मैं सारे योगा में रिपीट करवाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ जबकि वेदों का उल्लेख आया है तब,
क्योंकि आज के डेट में ये जो अष्टांग योग जो है, यम से लेके प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वाली चीजों तक, ये आज के डेट में हमसे फॉलो नहीं होते। और हम ही एज अ डॉक्टर फॉलो नहीं करते, हम ही एज अ वैद्य फॉलो नहीं करते, हम ही एज अ एक जनरल प्रैक्टिशनर फॉलो नहीं करते, तो हम अपने पेशेंट से एक्सपेक्ट कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आज के डेट के जो कुछ हम हमारे प्रैक्टिस में साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं और उनको असेस करके फिर हम गर्भ संस्कार पेशेंट से करवाते हैं। आज के डेट का जो एंड रहेगा, आने वाले 15-20 मिनट में मैं उस पर आऊंगा, तो वहां पे आपको समझेगा कि हाउ वी यूज the tools, present day tools for shaping the psychology of that mother and baby इन दिस गर्भ संस्कार कोर्स। तो वेदों में आहार विहार आता है, लेकिन जो आचार वहां तक आता है, लेकिन जो विचारों पे जब हम आते हैं तो उसको आज के डेट में गर्भ संस्कार में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और हर पेशेंट को हम डिफरेंट गर्भ संस्कार करवा सकते हैं। कैसे वो आने लास्ट के 5-10 स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन हम ओके बट हाउ गर्भ संस्कार। ओके, तो गर्भ संस्कार का यहाँ पे हम बेसिक ये जो स्लाइड्स है, मैं इसमें से कुछ पार्ट आपको हिंदी में भी दूंगा ताकि आप हिंदी में करो। बाकी जो भी कर्नाटक का है, मराठी है, कर्नाटक के लोग हैं, महाराष्ट्रियन लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं, वो सारे लोग अपने अपने आपको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। विथ इमेजेस में दूंगा, जो भी हमारे पेड ग्रुप के मेंबर है उनको ये सारा रेडीमेड मिलने वाला है। ओके, तो व्हाट इज गर्भ संस्कार? गर्भ इज वूम, ओके, एंड संस्कार इज टीचिंग गुड थिंग्स, okay, or installing good values, educating an unborn child in the womb. Okay, so Garbha Sanskar is a scientific way of editing baby in the womb by educating the mother to involve her positive emotions and share with the baby during pregnancy. So practice of a few simple activities which will lead to well-being of mother and fetus. So right stimulation from external world मेनली बाय द मदर। गर्भ संस्कार में क्या है कि स्टिम्युलेशन जो बाहर से जाएगा बच्चे में, स्पेसिफिकली वो कैसे जाएगा, वो जाने का जो टनल है, दैट टनल इज नो वन बट दैट बेबीज ओन मदर, उसके थ्रू हम ये गर्भ संस्कार करवाएंगे। ओके, इनफाइनाइट कैपेसिटी टू ग्रो हिज और हर माइंड एंड सेंसेस इफ द राइट एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन इज गिवन। The baby is not an object lying in the womb, but a smart and receptive human in development. Okay, हम सिर्फ जो मशीन पे देखते हैं, राइट, तो एक ऑब्जेक्ट की तरह उसका जो ब्रेन का डायमीटर, वो एब्डोमिनल डायमीटर, उसका फीमर का लेंथ कितना है, राइट, ये सारी चीजें देखते हैं जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। ओके, वो सोनोग्राफी के मशीन पे दिखता है, लेकिन वो एक स्मार्ट रिसेप्टिव ह्यूमन इन डेवलपमेंट प्रोसेस में है। उस हिसाब से सोचते हुए हमें जो चीजें करनी है, दैट चीजें, दोज थिंग्स आर द राइट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, सही एक्सटर्नल स्टिमुलेशन देना। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ हाईलाइट करी है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनको हम बहुत बारीकी में आने वाले 30 डेज में जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे बिगिनिंग में कहा कि कुछ लोग होंगे जो आज के ही टाइम के लिए आए हैं। ओके, सो मीट एंड ग्रीट योर सेल्फ, ओके, एफर्मेशंस, डाइट विच विल वर्क ऑन माइंड एंड बॉडी। ओके, सो हॉबीज उनको कल्टिवेट करना, रीडिंग, ड्राइंग, डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ओके, टॉयज। अभी इनको कैसे करना है, ये लास्ट के 4-5 स्लाइड्स में जब हम क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहां पे आपको समझेगा कि हम ये सारी चीजें कॉमन क्यों देख रहे हैं। ओके, सो योगा, मेडिटेशन, ट्रांस का प्रैक्टिस है, माइंड मैपिंग है, म्यूजिक थेरेपी है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी एफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है। ओके, जैसे कि नीरज चोपड़ा हो, अरुणिमा सिन्हा हो, उनका जैसा ये करना। ओके, सो सेल्फ हीलिंग है, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज हम करवाते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। ओके, तो उसमें से हम हर सेशन में इंट्रोडक्टरी कुछ चीजें लेके, हर सेशन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे हम सेशंस लेते हैं। ओके, तो आज के इसमें हम डाइट का एक सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम जो हमारा मासानुमासिक हमें ये पता है। ओके, कि एज अ डॉक्टर की आचार्य चरक ने क्या बताया है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है। ओके, तो फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ, ओके, तो वो मधुर शीतल और मधुर दुग्ध होना चाहिए। ओके, दीपनीय पाचनीय औषधि सिद्ध होना चाहिए। देन व्हेन वी गो फॉर थर्ड मंथ, हनी और घी होना चाहिए, मिल्क विथ हनी एंड घी। फोर्थ मंथ में मिल्क विथ बटर, फिफ्थ मंथ में मिल्क विथ मिक्स विथ घी। ओके, सिक्स मंथ में मधुर रस, सेवेंथ मंथ में सेम है, एट्थ मंथ में यवागु मिल्क और घी है, नाइन्थ मंथ में अनुवासन बस्ती है। ओके, तो ये सारी ही चीजें हम हर मंथ का एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ। ओके, सो मासानुमासिक आहार जो है
वो मासानुमासिक आहार का जैसे हमने स्लाइड देखा, तो उसका मोड ऑफ एक्शन, एक टेंटेटिव मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड फीटस गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स from the mother through placenta. So adequate nutrients are needed for monthly growth and development for the fetus. Okay, तो मासानुमासिक वृद्धि के लिए हम मासानुमासिक आहार देते हैं. सो प्रेगनेंसी में एडिशनल एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मदर को भी लगते हैं. सो आयुर्वेदा के हिसाब से मंथ वाइज यहाँ पे चेंज करना है. क्यों चेंज करना है? क्योंकि हर महीने में उसका शेप, उसकी डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है. तो इस हिसाब से जो कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए जाए, इस हिसाब से होता है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आज का सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन, इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आप कल जाके अगर किसी आपके एरिया में पेशेंट्स को लिए लेना है तो ले सको. ओके, तो यहाँ पे उसको क्या बताना है, आपको क्या नहीं करना है. ओके, तो स्पेसिफिकली फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन गर्भिणी शुड अवॉइड उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवाय, व्यायाम, अतितर्पण, अतिक्षरण, अतिकर्षण, दिवास्वाप. ओके, रात्रि जागरण, शुड अवॉइड वेग धारण, वेग उद्वेगजन्य. ओके, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग स्टोरी नहीं सुननी है, बहुत ऊंचे से उच्च भाषा, एक्सेसिव इंटेक ऑफ ड्राई फूड. ओके, बहि निष्क्रमण, हेवी फिजिकल एक्टिविटीज विच मेक आर फटिक अननेसेसरी. अभी ये सारी चीजें क्यों, हर एक चीज का हमें यहाँ पे स्टोरी टेलिंग भी करना है. अभी उसने वर्कआउट करना है प्रेगनेंसी में, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, ये बेनिफिट्स के ऊपर बात करने वाली स्लाइड है प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली. So it is multidimensional during the whole childbearing year. Okay, during pregnancy, it helps you to focus on your health in a deeper way. Yoga integrates the body, mind, and the spirit, bringing harmony, positive attitude. Okay, yoga practices improve posture, increase flexibility of spine, enhance breathing capacity, and calms the mind. Helps to manage the stress. Okay, it helps to reduce morning sickness, nausea, and mood swings. It relieves breast discomfort. It helps to relieve edema, fluid retention, and cramps, which are more common in the last month. They strengthen the abdomen and help to stimulate appetite and bowel action. Okay, तो हर एक चीज किसके लिए है? प्रेग्नेंट मदर को ये समझना है कि मैं अगर ये करूंगी तो क्या होगा, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया है. ओके, सो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोन्स, एनर्जी लेवल पे काम करना है. ओके, तो यहाँ पे हर एक महिला का ये सारा ही हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो या एनर्जी लेवल हो, डिफरेंट होती है. सो द अर्ली पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी हैज हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस. सो फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड शुड बी एन ऑप्टिमल, thus providing the uterus a proper environment in order to ensure the implantation of the embryo and proper attachment of the placenta. Hence, practice of basic poses with few modification is advised. Okay, so कौन से पोज करने हैं, कौन से आसन करने हैं, कौन से स्पेसिफिकली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ट्राइमेस्टर वाइज हम देखने ही वाले हैं. हमारा 17th 18th योगा का जब सेशन होगा 2 घंटे का, उसमें हम ये सारा देखेंगे. सो अवॉइडिंग इन्वर्जन्स, ट्विस्ट एंड बैक बेंड्स that might compress the uterus or overstretch it, which causes low blood circulation to the uterus. Okay, अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में योगा रिलेटेड चीजें क्या है कि अवॉइड लाइंग ऑन बैक बिकॉज इट रिड्यूसेस द ब्लड सर्कुलेशन, जो मैंने बताया था बिगिनिंग में. सुपाइन हाइपोटेंशन होता है प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पे इसको बोलना है. सो पोजेस दैट स्ट्रेच मसल्स टू मच इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टार्ट शिफ्टिंग टू द राइट. सो ऑल स्टैंडिंग पोजेस विथ योर हील अगेंस्ट द वॉल for support should be done. Okay, while twisting, move shoulders and back rather than waist. Okay, to avoid unnecessary pressure on the abdomen. तो ये अगेन हम पहले हम सारा मंथ वाइज डेवलपमेंट देखेंगे, then we will go into deeper into this. Okay, so third trimester begin at the end of the 6th month and last until the baby is born. Practice of only those asanas that do not exert the pressure over abdominal region. It is the best time to focus on gentle pelvic floor awareness practices that help in the delivery. So ये भी हम देखने ही वाले हैं 21st लेक्चर में कि नॉर्मल लेबर में हम क्या क्या एक्शंस लेंगे. ओके, सो प्राणायाम दैट इज ब्रेथ वर्क इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर प्रैक्टिस. इट इज नॉट ओनली promotes the relaxation but helps in the development of the ability of to focus deeply.
So supine poses should be avoided here. Okay. So parent infant foundation, early relationship between babies and their parents are incredibly important for building healthy brains. Okay. तो एक स्लाइड, हाँ ये स्लाइड में इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, कि 80% जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो ब्रेन का वो वूम में होता है। ओके, सो इसीलिए उसको यूटिलाइज यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट एक्शनेबल आइटम्स यूज करके हम वहाँ पे उसको यूज करना है 15% अप टू 5 years आफ्टर बर्थ। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो बताया कि प्रीवियस स्लाइड में कि अर्ली रिलेशनशिप बिटवीन बेबीज एंड देयर पेरेंट्स आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग हेल्दी ब्रेन्स, बिकॉज यहाँ पे 15% ऑफ द जो बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दैट हैपन्स अप टू द 5 years आफ्टर द डिलीवरी, एंड रेस्ट 5% डेवलप्स इन द रेस्ट ऑफ द लाइफ। ओके, तो ये स्लाइड को भी मैं आज ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करता, कल परसों हम जब इसमें आएंगे तो करेंगे, लेकिन मेनली द टेराटोजेनिक पीरियड। ओके, तो यहाँ पे कौन से पीरियड में कौन से पार्ट्स डेवलप होते हैं उसके लिए स्पेसिफिकली हमारा उस हिसाब से फोकस होता है प्रेगनेंसी में मेडिसिन का, प्रेगनेंसी में एक्टिविटीज का। ओके, तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं मेडिसिन भी और एक्टिविटी भी। ओके, अगेन ये पिच करते हैं कि हम अगर आपको हेलो, ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली हम ये जो मैंने जैसे बताया कि हम ये एक्टिविटी करवाते हैं, तो एक्टिविटी का है कि शायद आपने साउंड सुना होगा रिकॉर्डिंग का, तो वो वाला कराते हैं। सो यहाँ पे डिड यू नो ड्यूरिंग द फीटल स्टेज द ब्रेन एड्स अराउंड 2.5 लाख न्यूरॉन्स और ब्रेन सेल्स एवरी मिनट। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको हमें भी समझना है कि इतने न्यूरॉन्स हर मिनट में अगर एड ऑन हो रहे हैं बेबी में, तो हमारा एक क्वेश्चन होता है हर बार कि ज्यादा से ज्यादा लेट कब हम करें गर्भ संस्कार। इसको और अच्छे से डीप में मैं बताने ही वाला हूँ आगे के इसमें प्रेजेंटेशंस में, दूसरे तीसरे प्रेजेंटेशन में, कि कितना डिटेल में होता है ये न्यूरोनल डेवलपमेंट। लेकिन ये आप अभी इस स्लाइड से समझिए कि 2.5 लाख न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स जिसको हम कहते हैं वो हर मिनट में बनता है। तो हमारे पास एक दिन भी अगर गर्भ संस्कार करने के लिए मिलता है, एक दिन भी अगर उस लेडी को हम शेप कर सकते हैं उसके थॉट्स को, कि तो हम कितने बड़े एरिया पे या कितना बड़ा काम कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमें इससे ज्यादा अच्छी स्लाइड नहीं हो सकती। ओके, सो आर यू ऑल विथ मी? Yes, sir. ओके, सब लोग है, सो फटाफट सब लोग यस यस डाल दीजिए थोड़ा चैट बॉक्स में, क्योंकि ये थोड़ा अभी तक का जो था पेशेंट्स के लिए लेना था इस हिसाब से था। ओके तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का एक एक्टिविटी है, इधर द लॉजिकल ब्रेन और द क्रिएटिव ब्रेन। आप क्या है, ओके इसको हम अभी देखेंगे। आर यू रेडी? Yes, sir. हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड? Yes, टाइप sir. मी, टाइप मी Yes, मी sir. करके डालिए जो भी Me. इंटरेस्ट है अभी ये आने वाला जो है। ओके, तो मी करके डालिए, थोड़ा इनबॉक्स को फुल कीजिए। यस सर। ओके, सो अभी इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़िए। ओके, एनीवन वांट्स टू रीड द इंस्ट्रक्शन? कोई एक अनम्यूट करके इंस्ट्रक्शन पढ़िए। The activity shows you which of your brain is stronger or more exercised. Look at the next chart. Read each item. Say the color, not the words. Say how many mistakes you make. If you make no mistakes, you are balanced brain type of person. रीड इंस्ट्रक्शन नंबर 3। Instruction number 3. Say the color, not the words. रीड वंस अगेन। Say the color, not the words. ओके, अभी आपका ही टेस्ट लेंगे हम, बाकी के लोग भी करेंगे। ओके, Okay. गो ऑन। See, look at the chart and say the color, not the word. Yellow, blue, orange, black, red, green, purple, yellow, red, orange, green, black, blue, red, purple, green, blue, orange. क्या स्कोर किया आपने? Purple, yellow, red. स्कोर क्या हुआ आपका? मैं नहीं दिख रहा सर स्कोर। 0 स्कोर हो गया आपका।
हाँ, okay. इंस्ट्रक्शन पढ़िए ऊपर। Look at the chart and say the color, not the word. अभी Okay, फिर blue, purple, green, blue. गो ऑन, गो ऑन। Mm-hmm. डिफिकल्ट है? Yes, sir. हाँ, पढ़िए फिर से एक बार ट्राई कीजिए, अभी फास्ट ही जाना है लेकिन। Look at the chart and say the color, not the word. हम्म Blue, purple, green, blue. Or yellow, blue, orange, black, red, green, purple, yellow, red, orange, green, black, blue, red, purple, green, blue, orange. ओके, सो जो येलो लिखा है उसको क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे? ग्रीन ब्लू लिखा है ग्रीन ग्रीन ब्लू लिखा है उसको क्या पढ़ना है? रेड Red, Oh, red. God, sorry. ऑरेंज को क्या पढ़ना है? वायलेट दो ब्लू बार जीरो स्कोर किया आपने। Yellow को green, blue, red, orange, blue. Green, red, Blue, blue, yellow, ओके ओके, सब blue, लोग एक बार black. अनम्यूट मत कीजिए, सब लोग एक बार नहीं करना है अनम्यूट, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे कैओस हो जाएगा। ओके, सो इंटरेस्टेड? Yes, इंटरेस्टिंग sir. है एक्टिविटी? यस Yeah, सर yeah. तो पूरा नींद तो चले गए. Interesting. ओके, डन। सो लेफ्ट राइट ब्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, योर राइट ब्रेन ट्राइज टू से द कलर बट योर लेफ्ट ब्रेन इंसिस्ट ऑन रीडिंग द वर्ड। समझ में आया क्या हो गया? आपका जो राइट ब्रेन है वो कलर बताने की कोशिश करता है, लेकिन आपका जो रेड लेफ्ट ब्रेन है वो क्या इंसिस्ट करेगा? वो वर्ड इंसिस्ट करेगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग यहाँ पे ग्रीन, आपका लेफ्ट ब्रेन बोलेगा येलो। इंस्टेड ऑफ सेइंग यहाँ पे रेड, आपका लेफ्ट ब्रेन बोलेगा ब्लू। ओके, सो दैट इज व्हाई दीज एक्टिविटीज हेल्प, ओके, कीप अस एंगेज, बट दे हेल्प मोर इन बैलेंसिंग। इसलिए क्या बताया यहाँ पे लास्ट लाइन में? इफ यू मेक नो मिस्टेक्स यू आर अ बैलेंस्ड ब्रेन टाइप ऑफ पर्सन। ओके, तो हर बार यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ना है और पढ़ने की आदत भी लगानी है। ओके, तो इस हिसाब से जाता है। राइट ब्रेन एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर। ओके, इट इज ओके, सॉरी, अभी नेक्स्ट वॉलंटियर फटाफट। फर्स्ट अनम्यूट एंड से कि आई वांट टू रीड, देन यू रीड। आई कैन रीड हेलो, आई कैन रीड अरे इस मैडम आपका नाम क्या है? प्रोक्रिया लाइफ, योर गुड नेम मैम? डॉक्टर भावना या डॉक्टर भावना, प्लीज रीड इट। so it is right brain exercise which says that look at the picture a thing is not a thing but a think रीरीड लास्ट सेंटेंस, रीरीड। a thing is not a thing but a think ओके, तो अ थिंग इज नॉट अ थिंग बट अ थिंग। ओके, इसको दिमाग में रखिए। और अभी क्या दिख रहा है आपको? is thinking something हाँ, someone is thinking something समवन इज, हु इज दैट समवन? and it is a person who's got the ओके, hair बाकी के and a जिन जिन face लोगों को जिन लोगों को जो भी दिखा है वो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डालिए फटाफट फटाफट। किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या इमेज? there's a person with the ears eyes can be seen ओके, chin is ग्रेट identified ग्रेट ग्रेट ग्रेट। both a lady or old man. ओके, किसने बोला ये? Sorry, अरे सॉरी नहीं बोलना, नाम बोलना है अपना। Radhika. I can see a lady with one angle and a man, old man, with another angle, I guess, with some little eyes. कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके,
क्योंकि जिन्होंने भी जो भी हमारे प्रक्रिया भावना मैम थे, सो भावना मैम प्लीज रीड। Know yourself. If you are a left brainer, you might tend to see things according to rules and मैडम बड़े patterns. आवाज में पढ़िए सो दैट एवरीवन विल। If you are a left brainer, you might tend to see the things according to rules and patterns. If you are a right brainer, you might tend to see things in a more creative way. Are you a left brainer, a right brain, or a combination of both? You will need to know which of your two brains are more dominant so that you can train the other brain. You might also need to learn a team up with someone of the opposite brain so yours in order to come up with a good project. ओके, सो जिन्होंने भी बोथ बताया था, मैं नाम भूल गया उनका, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, लास्ट स्लाइड में आपको पता चल गया होगा, राइट? सो हाँ, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लेने हैं लास्ट में मुझे, तो आई जस्ट लिटिल बिट हरी करते हैं थोड़ा सा इसको। हेलो। Sir, you can continue. You're audible. Yeah. No, I'm not continuing. So the condition of woman's womb also directly reflects the condition of woman's minds, spirits, and actions. So the womb is a storehouse of all our emotions. Okay. तो ये कैसे है, इसको भी हम आने वाले सीरीज में थोड़ा आगे देखेंगे। ओके, सो एक टास्क यहाँ पे फिर से हम बनवाते हैं पेशेंट से कि लाइफस्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायरी में, कि लाइफस्टाइल ड्यूरिंग एवरी डे 9 मंथ्स 9 डे का, स्लीप पैटर्न, थॉट प्रोसेस, एक्टिविटीज डन फॉर राइट एंड ब्रेन लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट, जैसे कि अभी हमने देखा, तो इसको कैसे करवाना है, किसका क्या चॉइस है, उसको अभी हम इसके ऊपर हम डिटेल में जाने ही वाले हैं। ओके, श्लोका नरेशन, बुक्स रीडिंग, प्रेयर, बायोग्राफी ऑफ ग्रेट लेजेंड्स एंड वीडियोस, दीज आर सम ऑफ द पिलर्स विच हेल्प अस। ओके, सो ये बेसिकली, सॉरी ये मराठी में है, लेकिन जब हम सेशंस लेते हैं पेशेंट्स को इंटरेक्टिव, तो हम इसको यूज करते हैं कि गर्भावस्था में इम्पोर्टेंस क्या है, हर मंथ वाइज उसका डाइट क्या है, उसकी मेडिसिन क्या है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है। ओके, सो बेबी के जो एक स्पेसिफिक हमारा होता है कि उसका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन हम उसका पीक्यू, फिजिकल क्वेश्चन, आईक्यू इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन, एंड एसक्यू सोशल और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू के हिसाब से उसका जर्नलिंग होना चाहिए, उसको हम कल से सीखेंगे कि पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू के हिसाब से हम जर्नलिंग कैसे करवाते हैं और कैसे हम एक एक्सपेक्टेड आउटकम अचीव कर सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी टोटली गेम चेंजर, क्योंकि नो वन इन द गर्भ संस्कार फील्ड डज इट ओनली। आई एम डैम श्योर कि इस हिसाब से गर्भ संस्कार में ये जो हम कराते हैं ना, कोई नहीं कराता आपसे। सो इन दैट वे विल टीच यू और डिस्कस विथ यू। सो जो भी रूटीन लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, तो उसके साथ साथ योग है, योग निद्रा है, नॉर्मल लेबर के लिए क्या करना है, कौन से मंत्र है, मंत्र और म्यूजिक दोनों ही हम बहुत डीप में देखने वाले हैं। ओके, तो म्यूजिक, यू विल गेट रेडीमेड म्यूजिक टू लिसन एंड टू शेयर विथ योर पेशेंट्स। एंड नॉर्मल डिलीवरी के पश्चात क्या क्या करना है, बेबी के केयर क्या है, इसका शिशु का संस्कार क्या क्या है, इसको हम देखने ही वाले आगे। ओके, सो यहाँ पे योर प्रेगनेंसी कुड बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू शेक अप द वे यू थिंक एंड इंट्रोड्यूस अ लिटल mindfulness into your routine. Okay, so as I told you, this was a totally presentation dedicated for taking an introductory class. Okay, so सभी के पास पेन पेपर है? Yes, sir. Okay, so now I am shifting my presentation on some other slide. Okay, let me share my screen. अरे यार, जो भी लोग हमारे, ओके, स्क्रीन विजिबल है? Yes, हेलो। sir. Yes, ओके, sir. पेन पेपर से नहीं होगा। जो भी जो लोग भी ये 30 डेज के सीरीज में जुड़े हैं, उनको हम इसका पीडीएफ भेजेंगे, आप प्रिंट आउट करके इसका मार्किंग करवा देना। ओके, और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है कि हमारे सेशंस आगे कैसे कैसे हम सेशंस में जाने वाले हैं। जो भी आपने स्लाइड्स देखे,
हर स्लाइड्स पे हमारा कम से कम एक आध दो घंटे का लेक्चर होने वाला है। योगा पे, म्यूजिक पे, मंत्रा पे, डाइट पे, न्यूट्रिशन पे, नॉर्मल लेबर पे, मासानुमासिक परिचर्या पे। तो इसलिए एक 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 कैसे सेशन एंड में होता है, तो आप कैसे कंडक्ट करते हो उसका एक एक झलक था। और एट द एंड ऑफ द दिस क्लास यू विल एबल टू कंडक्ट, आपका सेशन हम आपसे करवाएंगे। ओके, सो इन दैट वे इट विल हैपन। आपके ब्रेकआउट्स रूम में भी आपको बहुत बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे। ओके, जो भी लोग ये 30 डेज की सीरीज में जुड़े नहीं है, वो लोग आप आने वाले जो स्लाइड्स है उसके फोटोज लीजिए। ओके, क्योंकि that is very much helpful and that is very much needed. Okay, so usually रजिस्ट्रेशन जब हम कराते हैं गर्भ संस्कार कोर्स में कहीं पे भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ओके, तो आई ओपन माय सेशन विद दिस 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, 5 5 के सेट के 10 सेट्स रहेंगे इसमें। ओके, 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन में ये बेसिकली एक टेस्ट है। ओके, सो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई यू एक्ट द वे यू डू एंड हाउ योर पर्सनालिटी इज स्ट्रक्चर्ड। ओके, तो आप जो भी बिहेव करते हो वैसा क्यों बिहेव करते हो आपको समझ में आएगा इन सवालों से। ओके, और आपका जो भी एक जो पर्सनालिटी है आपकी, वो किस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है, इसके लिए एक सवाल है। ओके, तो अभी ये आपको मैं दे रहा हूं, आपके लिए बता रहा हूं। लेकिन जब आप ये अपने पेशेंट्स का करते हो, ओके, व्हेन यू डू दीज थिंग्स फॉर योर पेशेंट्स, ओके, तो बेसिकली होता क्या है, आपको आइडिया आ जाता है कि ये जो मेरे पास पेशेंट गर्भ संस्कार के लिए आया है वो एक्चुअल में अंदर से क्या है। इसलिए मैंने वेदों का जब स्लाइड आया था तब बताया था, वेदों में हम आहार विहार आचार तक आते हैं, लेकिन विचार पे आने के बाद हम पेशेंट को सिर्फ बोलते हैं कि आप विचार बदलो। साला ये विचार बदलेगा कैसे? तो इसके लिए ये जो इंपॉर्टेंट आगे के 4 5 स्लाइड्स है, ओके, तो 4 5 स्लाइड्स में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन के साथ करना क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, सो आपको मैं अभी जो इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं वो इंस्ट्रक्शन है स्कोरिंग ऑन रिजल्ट का। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी अभी ये टेबल आएगा, टेबल के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन हर टेबल के ऊपर आई लिखा हुआ है और नीचे 5 क्वेश्चन है। ओके, या क्वेश्चंस से भी आप ये समझिए कि 5 सेंटेंसेस है। ओके, तो हर स्टेटमेंट जो 1 से 50 के जो सेंटेंस है, 1 से 50 टोटल सेंटेंस है, हर सेंटेंस को आपको मार्क देना है। ओके, कहाँ पे? ऑन द स्केल फ्रॉम 1 to 5। जो भी आप पढ़ोगे उसको आप मार्क दोगे इन बिटवीन 1 to 5। ओके, अब यहाँ में 1 मतलब डिसएग्री लिख के लीजिए, आपको ये चाहिए तो 1 इज डिसएग्री। जो भी पेड मेंबर्स है, जो भी रजिस्टर्ड ग्रुप में है, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। आपको इसके लिए नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 2000 नॉट इन द ग्रुप। सो आप ये टेस्ट को आप रिजल्ट कैसे देंगे? ओके, सो 1 इज डिसएग्री, 2 इज स्लाइटली डिसएग्री, 3 मीन्स न्यूट्रल, 4 मीन्स स्लाइटली एग्री एंड 5 मीन्स टोटली एग्री। आप एग्री करते हो उस सेंटेंस से। ओके, सो विल मूव टू द सेंटेंस। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। ओके, ओके, सो ये जो टेस्ट है यहाँ पे फर्स्ट, ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम द लाइफ ऑफ पार्टी, आई फील लिटल कंसर्न फॉर अदर्स, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, आई गेट स्ट्रेस्ड आउट इजीली, आई हैव अ रिच वोकेबुलरी। ओके, सो हर बॉक्स के सामने आपको मार्क्स डालने हैं जिनके पास और अगर मेंबर भी है आपको ये कल मिलेगा, लेकिन अभी भी आपको करना है तो आप 1 to 50 सिर्फ नंबर डालिए और आपके सामने मार्क डालिए। मैं आपको इसका एनालिसिस आपको हर एक को दूंगा। ओके, सो जो भी नहीं है ग्रुप में वो लोग इसका फोटो लीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 के सामने आई एम द लाइफ ऑफ पार्टी। ओके, अगेन जैसे थोड़ी देर पहले हुआ था कि आपको बारीकी से हर इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, मैंने बताया था। सेकेंड क्वेश्चन, आप सेकेंड सेंटेंस पढ़िए, आई फील लिटल कंसर्न फॉर अदर्स। बहुत सारे लोग होते हैं वो उनको बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, लेकिन वो क्वेश्चन ये सेंटेंस अलग से समझते हैं। आई फील लिटल कंसर्न मतलब मैं किसी की परवाह नहीं करता। ओके, अगर आप बहुत परवाह करते हो, ओके, तो यहाँ पे स्कोर आ लगाएगा। लेकिन आई फील लिटिल कंसर्न ऑफ फॉर अदर्स, अगर मैं किसी के भी परवाह नहीं करता तो मैं 5 पॉइंट करूंगा। ओके, लेकिन मैं अगर किसी की परवाह ज्यादा करता हूं तो इस सेंटेंस के लिए मेरा 1 स्कोर आएगा। समझ में आ रहा है?
किसी को कुछ डाउट्स है? इज एवरीथिंग ओके, अंडरस्टैंडेबल? म्हणजे ओके. सर 1 to 10 मध्ये मार्क्स द्यायचे का त्याला? No, 1 to 5. Okay. 1 1 to is 5. you disagree. 2 is you slightly disagree. 3 means you are neutral on that sentence. 4 means you are slightly agree, and 5 means you are totally agree on this sentence. Okay. अभी समझ में आया? सो आई एम द लाइफ ऑफ पार्टी, मुझे पार्टी करना पसंद है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्री करता हूं तो मैं 5 मार्क दूंगा। नहीं, मुझे पार्टी करना, घूमना, ये मतलब मैं उस तरीके का नहीं हूं, मैं एक जगह पे बैठता हूं, तो मैं डिसएग्री करता हूं, तो आई विल गिव 1 मार्क। या नहीं, मुझे कभी जाता हूं, मन में आता है तो जाता हूं, तो यहाँ नहीं जाता, ऐसे कुछ है नहीं कि नहीं जाता। लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं जा सकता हूं, तो यू आर न्यूट्रल, सो यू विल गिव द 3 मार्क्स। अभी समझ में आया? ओके। तो नाउ आई विल रीड द सेंटेंस, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस समझ के मार्क्स डालने। ओके। सो आई आई डोंट टॉक अ लॉट। ओके। आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल। आई लीव माई बिलोंगिंग्स अराउंड। आई एम रिलैक्स्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। आई हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ओके। नाउ आई फील कंफर्टेबल अराउंड पीपल। आई इंसल्ट पीपल, मतलब आपको यहाँ पे ऑनेस्टली आंसर देना है। अगर आपको आदत है कि आप हर एक बार किसी ना किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी का ना किसी का इंसल्ट करते हो, अगर आप ऐसे करते हो और आपने 1 मार्क दे दिया तो आप फंस जाओगे। आप करते हो, अगर आपने जेन्युइनली 5 मार्क दिया तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज योर पर्सनालिटी टाइप, आप ऐसे क्यों हो और आपको करना क्या है। वो आपको एंड में पता चलता है। ओके। सो I pay attention to details. I worry about things. I have a vivid imagination. I keep in the background. I sympathize with others' feelings. I make a mess of things. I seldom feel blue. I am not interested in abstract ideas. Okay. आई स्टार्ट कन्वर्सेशंस। ओके। बहुत बहुत से लोग जो होते हैं कि जो शाय फील करते हैं, वो इजीली कन्वर्सेशन स्टार्ट्स नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं उनको कुछ कारण नहीं होता, वो कहीं पे भी जाके शुरू होते हैं। तो इस हिसाब से जो नहीं बात करते वो दे दे विल गिव, ही और शी विल गिव 1 मार्क। जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं वो दे विल गिव 5 मार्क्स। ओके। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स। आई गेट कोर्स डन राइट अवे। आई एम इजीली डिस्टर्ब। आई हैव एक्सलेंट आइडियाज। I have little to say. I have a soft heart. I often forget to put things back in their proper place. I get upset easily. I do not have a good imagination. I talk to a lot of different people at parties. I am not really interested in others. I like order. I change my mood a lot. I am quick to understand things. I don't like to draw attention to myself. I take time out for others. I shrink my duties. I have frequent mood swings. Sorry, I use difficult words. Okay. And last set of questions is, I don't mind being in the center of attention. I feel others' emotions. I follow a schedule. I get irritated easily. I spend time reflecting on things. I am quite around strangers. I make people feel at ease. I am exacting in my work. I often feel blue and I am full of ideas. ओके। सो ये 50 सवाल है। 50 के 50 सवाल के सामने आपको 1 में से 5 तक के नंबर देने हैं। ओके। सो इसका एनालिसिस और ये सारी चीजें हम आगे के क्लास में देखेंगे, लेकिन दिस इज द वे यू ओपन और यू टेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ द गर्भ संस्कार अटेंडीज इन योर सेशन। कि आप इनका इस हिसाब से 1 से 5 के हिसाब से ये 50 क्वेश्चन अगर आप डालते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि उस आदमी का पर्सनालिटी क्या है। अभी पर्सनालिटी में हमें क्या पता चलता है। ओके। सो दीज आर द एरियाज। यहाँ पे हमने जानबूझ के बहुत बार ये लोग आते हैं कि दोनों चीजें बताओ। ओके। तो आपको यहाँ पे एक हिंट आ जाएगा इससे। ओके। तो क्या है,
बहुत सारे लोग ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओके, सो नवीन अनुभव के प्रति खुलापन, ये आपको इन सवालों से पता चलता है। तो नई चीजें सीखने, सोचने और अपनाने की प्रवृत्ति होती है, ओके। सो कॉन्शियसनेस, तो कर्तव्य निष्ठा एवं अनुशासन, ओके, सो इट इज नॉट कॉन्शियसनेस, ओके, इट्स कॉन्शियसनेस, ओके। सो मीन्स यहाँ पे काम करना या अनुशासित रहना, सो जिम्मेदार, संगठित और लक्ष्य केंद्रित होना, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दीज थिंग्स। सो एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता, सो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ अपनी ऊर्जा या सामाजिकता शेयर करना। एग्रीएबलनेस, सहयोगशीलता एवं सौहार्द, सो ये लोग दयालु होंगे, सहयोगी होंगे, सहानुभूतिपूर्ण होंगे, भरोसेमंद होंगे, ओके। सो न्यूरोटिसिज्म, सो न्यूरोटिसिज्म में क्या होगा कि भावनात्मक अस्थिरता या भावनात्मक संवेदनशीलता बहुत होती है। तो ये लोग तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं की प्रवृत्ति होती है। सो अब इससे आप क्या करेंगे, हम यहाँ से, इससे हमें आइडिया आता है कि ये पर्सनालिटी टाइप क्या है और इसको क्या टास्क देने हैं गर्भ संस्कार में। सो आपको ये स्लाइड्स इसको मैं बहुत अच्छे से थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आई गेस, जहाँ पे इसका लिए हमने स्लॉट रखा है, तो वहां पे मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और जो भी हमारे पेड ग्रुप के मेंबर है इनका हम एनालिसिस भी करवा के देंगे, ओके। तो आप पेपर देंगे तो आपको हम आपका एनालिसिस करवा के देंगे। तो इस हिसाब से आपको अपने पेशेंट का, जब आप एक क्वेश्चंस के थ्रू एनालिसिस करते हो, देन यू गो टू द डिफरेंट अप्रोच, टू द डिफरेंट लेवल ऑफ गर्भ संस्कार। क्योंकि मैंने बताया ना कि संहिताओं में, वेदों में हमें मिलता है कि आचार आहार विहार तक, लेकिन जब विचारों से आदमी डिस्टर्ब होता है तो उसको पता ही नहीं होता कि वो डिस्टर्ब क्यों है। प्रेगनेंसी में तो एक रीजन होता है कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन रोज होते हैं, लेकिन उसके आगे चलते उसका अगर मूलतः स्वभाव वैसा डिस्टर्बिंग है, तो उसको यहाँ पे इस चार्ट से, इस क्वेश्चन सीरीज से काउंसलिंग में और सपोर्ट में हम अलग लेवल पे जाके हेल्प करते हैं। तो उसको हम उस आने वाले सीरीज में देखेंगे, ओके। तो इस हिसाब से हम ये असेसमेंट, ये टेस्ट करेंगे और फिर गर्भ संस्कार का हम उसको सेशन प्लान करेंगे। इसलिए मैंने बताया कि हम कस्टमाइज सेशन बनाएंगे। हमारे क्लास का हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे आने वाले 30 दिनों में, लेकिन ऐसे कुछ टेक्निक्स है, ऐसे कुछ टाइप्स है। अभी आई 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 गेस कि बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने पहले भी गर्भ संस्कार के सेशंस किए हैं, ओके। लेकिन जो हम अप्रोच लेके जा रहे हैं उसका एक आपने आज झलक देखी है, ओके। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग से लेके उसका डिलीवरी होके उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में गर्भ संस्कार से हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, इस हिसाब से। अभी जो भी लोग जुड़े नहीं है उनको अगर कुछ पूछना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ओके। बाकी के लोगों के लिए जो है, बाकी के लोगों के लिए जो हम सेशंस लेंगे वो इसमें लेंगे, हर एक चीज को अलग अलग से देखेंगे हम, ठीक है। किसी को कुछ सवाल पूछना है, एनालिसिस हम करेंगे हर सभी का, ओके। फीलिंग ऑफ ब्लू मीन्स ये है जो दुखी, उदास उदास रहते हैं ना वो। हाँ, ट्रीटमेंट पार्ट रहेगा डॉक्टर शैला जी, ट्रीटमेंट पार्ट रहेगा, इनफर्टिलिटी का डिटेल में नहीं रहेगा। क्योंकि इनफर्टिलिटी अगर हम टच करेंगे तो इनफर्टिलिटी आप देखिए कि ओरिज से लेके सर्विक्स और वजाइना, एंडोमेट्रोसिस से लेके हर चीजें उसमें आती है। आज पर्सनल, अभी जो इंट्रोडक्टरी सेशन लिया है तो वो तो आप ले सकते हैं। सर टाइमिंग ऑफ लेक्चर इज 9 और 7, नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने वो बहुत से लोगों को अटेंड करना था, तो रिक्वेस्ट थी। सो क्लासेस विल बी अराउंड 7-7:30 हम प्लान करेंगे। हर महीने विजिट रखना होगा क्या पेशेंट को? जी रख सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डॉक्टर सोनल, इफ यू आर इन द बैच विल गो ऑन टू इट इन डिटेल। आप अपना डिसीजन खुद से ले पाएंगे क्लास के बाद कि आपको कैसे विजिट रखना है। डेली रखना है, वीकली रखना है, मंथली रखना है, यू कैन प्लान इन दैट वे। जो हम प्रेगनेंसी में वैदिक कर्म करवाते हैं, पुंसवन और सीमंतोनयन, उनका भी डिटेलिंग आप दो। उसका उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल गाइड करेंगे आप?
जी 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 मैडम, उसके लिए एक सेपरेट 2 घंटे का क्लास है, वैदिक पंचकर्म का, वैदिक संस्कार का। बीज शुद्धि बिफोर प्रेगनेंसी सेशन होगा क्या? यस मैडम, डॉक्टर वर्षा चौगुले, हम बीज शुद्धि पे 2-3 दिनों तक बात करेंगे, ओके, कि व्हाट इज द बेस ऑफ बीज शुद्धि। क्लास टाइम वुड बी अराउंड 7:30 प्लान करेंगे सर। कल क्लास है? यस यस, कल क्लास होगा डॉक्टर करिश्मा, इफ यू आर इन द मेंबर। क्या आप रजिस्टर हो सकते हैं? जी जरूर हो सकते हैं। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, they can immediately contact डॉक्टर ललित और डॉक्टर मंजुषा फॉर ज्वाइनिंग, ओके। डॉक्टर राधिका, आप क्या पूछ रहे थे? सॉरी, बीच में टाइम मैसेज आ गए। सर एक्चुअली हम लोग हमारे हाँ, घर आपने में वैदिक वैदिक संस्कार के बारे में पूछा ना? वैदिक तो संस्कार हाँ से जी, हाँ जी, वैदिक संस्कार का व्हाट इज अनवलोबन, व्हाट इज सीमंतोनयन, व्हाट इज आपका पुंसवन, ओके, हर एक चीज पे डिटेल में जाएंगे। थैंक यू। और जो पुरोहित आप लाके करते हो, वो भी आप कर सकते हो, पुरोहित को बुला के भी कर सकते हो, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और किसी को कुछ डाउट्स है? यस, यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ड्यूरेशन आप एक बार फोन करके पूछिएगा कितने दिन का रहेगा। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल फॉर 15 मंथ्स टू ऑल द एनरोल्ड। ओके, हाँ आ गया, देखो ये जवाब। रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, 15 डेज के लिए रहेंगे। सेशन आज के लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन सर को, इट्स क्योंकि नॉट 15 days, it's 15 months. सॉरी 15 मंथ्स के लिए आपका, सॉरी सॉरी, 15 मंथ्स के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। और आज लास्ट डेट रहेगा, आपको रजिस्टर करना है तो क्यों? क्योंकि कल से इतना हम मिक्स नहीं जाएंगे, हम स्पेसिफिक टू द टॉपिक्स जाने वाले हैं कल से। तो कल का जो सेशन है वो प्री कंसेप्शनल केयर से शुरू होगा। और मैंने उसको ऐसे डिजाइन किया है कि जैसे आपने आज 2 पार्ट में उसको महसूस किया, ओके, आपके ध्यान में नहीं आया, लेकिन मैंने उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वैसे ही सेशंस हमारे होंगे। तो जहाँ पे आप एक्टिविटी बेस्ड भी रहेगा, आपको टास्क भी रहेगा, रोज आपको असाइनमेंट मिलेंगे। आज मैंने जानबूझ के असाइनमेंट नहीं दिया क्योंकि फर्स्ट डे है और ओपन टू ऑल है, इसलिए। तो असाइनमेंट भी रहेंगे, और असाइनमेंट में पीडीएफ विल बी, यस, नेसेसरी, ऑल नेसेसरी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड। ऑफलाइन क्लास, ये जो फीस है हमारा, ये 30 डेज का, इसमें ऑफलाइन क्लास है नहीं। लेकिन हम एक ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप हम प्लान करेंगे। ये खत्म होती है, जो भी 30 दिनों में आपने डिस्कशन में पार्ट लिया है उसको आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिले। इस हिसाब से हम 30 दिन के बाद एक खत्म होती है, एक ऑफलाइन प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा मीटिंग होगा, गेट टुगेदर होगा, और एक्टिविटी में हम इंटरचेंज बहुत सारे थॉट्स करेंगे, ओके। हॅलो सर. जी बोलिए हॅलो मैडम। सर. यस मैडम। सर जर जर समजा आम्ही ऑफलाईन क्लास आउट ऑफ आमच्या सिटीचा असला आणि आम्ही नाही अटेंड करू शकलो, तर मग अशा वेळेस आम्हाला त्याचं रेकॉर्डिंग नहीं, मिळेल? ऑफलाइन का मैडम हम इसलिए रखेंगे क्योंकि जैसे अभी वैदिक संस्कार का इन्होंने सवाल पूछा, राइट? तो वैदिक संस्कार में आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे पेशेंट्स बुला के, वहां पे जो मेरे पुरोहित है, आपका उनसे भी इंटरेक्शन हो जाएगा। और कुछ चीजें हैं जो कि दिमाग में है कि जो ऑफलाइन में ही हो सकती है, ऐसे मेरे दिमाग में कुछ चीजें हैं, तो वो आप देख सकेंगे। तो उसी उसके लिए रहेगा। ऑफलाइन में आप नहीं आ पाओगे तो उसका भी ऑनलाइन कर सकते हैं, तो देखेंगे, प्लान करेंगे कि उसको भी ऑनलाइन शो करने का। ऑफलाइन में दो ठीक आहे. चीजें होती है, आपका इंटरेक्शन हो जाता है, और हमारा बेस क्लियर है, हमारा टारगेट डे 1 से क्लियर है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी, ओके। अब में बहुत सारे लोग होंगे जो खुद से योगा नहीं करा पाएंगे। अगर इस ग्रुप में, आप इस कम्युनिटी में आपको एक को पार्टनर मिल जाता है हु इज एक्सपर्ट इन योगा, ओके, एंड ही विल बी एबल टू कंडक्ट द योगा फॉर योर पेशेंट, देन इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी थ्रू दिस कोर्स, ओके। सो हमें कम्युनिटी बनानी है। तो वैसे ही लोग चाहिए जो डेडिकेटेड है, जो कमिटेड है। और गर्भ संस्कार इन इटसेल्फ इज अ मिलीनियर ब्लूप्रिंट, मैंने एक लेक्चर लिया था कि तो मिलीनियर बनाने वाली चीज है, तो डेफिनेटली आपको बना देगी। तो हम कम्युनिटी आणि बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। आणि सर आपण हा कोर्स केल्यानंतर आपण स्वतःचे गर्भसंस्कार क्लासेस ऍटलिस्ट मिनिमम किती दिवसांमध्ये किंवा किती महिन्यांमध्ये घ्यायला कॉन्फिडंट होऊ ऑन द शकतो? वेरी नेक्स्ट डे मैम, 30 डेज होगा ना, तो वेरी नेक्स्ट डे यू हाँ. विल बी, आपके पास इतना मटेरियल आएगा, आप इतनी चीजें करोगे। आप आज के एक के दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, राइट? येस अभी येस येस. अभी आप एक्सपीरियंस कीजिएगा 29 डेज में
कम से कम 25 से ज्यादा आपको सिर्फ मैं असाइनमेंट दूंगा। तो 25 असाइनमेंट्स इज इक्वल टू 25 एक्टिविटीज और 25 थिंग्स विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर पेशेंट्स, जो ओके आज आपके डेट में नहीं, आज के डेट में आप नहीं करते, राइट? तो यू विल बी इमीडिएटली टेक द एक्शन। मेरा तो मानना है आज के डेट में भी मैंने इतना, अगर आज जैसे कि जैसे स्लाइड आपने कन्वर्ट किया आपके लैंग्वेज में, सो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पेशेंट्स, इजंट इट? यस यस सो डेफिनेटली विल बी एबल टू, वेरी नेक्स्ट डे विल बी एबल टू टेक द क्लास, क्योंकि 29 सेशन में आप में से कोई जो भी कमिटेड रहेंगे, जो भी कंटिन्यूअस एक्टिविटी करेंगे, जो भी टास्क कंप्लीट करके सबमिट करेंगे टाइम टू टाइम, उनसे उन एक दो जो दो लोगों को हम क्लास करवाएंगे। और ब्रेकआउट सेशंस भी हमने प्लान किए कि आप आपका 5 5 6 6 लोगों का ग्रुप होगा और उसमें आपसे भी एक्टिविटीज हम करवाएंगे। आणि सर क्लास कंप्लीट झाल्यानंतर आफ्टर सर 15 मंथ्स त्यानंतरही सर तर आम्हाला काही क्वेरीज येतात, सपोज मी क्लासेस कंडक्ट करते आणि मला तेव्हा जर काही क्वेरीज येतात तेव्हा पण तुम्ही आम्हाला सपोर्ट मध्ये राहणार? मैडम, मैंने आपको बोला कि वी आर इन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी। मैं सिर्फ अकेला आपको नहीं हेल्प करूंगा, आपको कम्युनिटी के बाकी के लोग भी हेल्प करेंगे और आप भी बाकी के कम्युनिटी के लोगों को हेल्प करोगे। हम जो ऑफलाइन यस कॉन्फ्रेंस का प्लान कर रहे हैं, दैट इज नॉट कि ये करना है, इस उसका बेस ही वही रहेगा कि एक अच्छी कम्युनिटी बने जहाँ पे, क्योंकि आज के डेट में आप देख जाओ, आप जाओ और ऑनलाइन देखो गर्भ संस्कार डाल के कितने लोग डॉक्टर्स है, आयुर्वेदा के डॉक्टर्स जो गर्भ संस्कार के सेशंस लेते हैं, मैक्सिमम नॉन मेडिकोज है, मैक्सिमम नॉन मेडिकोज है, दे हैव हायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर वर्किंग फॉर देम, इजंट इट? यस हाँ, तो आप में से 100 में से 2 लोगों ने भी अभी अपने आप की गर्भ संस्कार प्रैक्टिस की, तो बस है ना मेरे को, और क्या चाहिए? तो यस माय 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 बेसिक पॉइंट इज, मुझे यहाँ पे, और जिन्होंने भी किया होगा गर्भ संस्कार, मुझे पता नहीं आप में से होंगे, किसी किसी ने भी ये जो मैंने 5 सवाल दिए, 5 5 का सेट करा के दिए ना, ये पर्सनालिटी असेसमेंट का नहीं करवाते, आई नो। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जाके यूनिवर्सिटीज में रह के सीख के आया हूँ। Then with that confidence I am able to deliver this, okay, and I am handling daily patients, so I know कि पेशेंट्स को हैंडल करते करते ये सब सीख आ जाती है। बुक्स पढ़ते पढ़ते, पेशेंट्स का हैंडल करते करते, किसको कैसे ट्रीट करना है, डील करना है, isn't it? So in that way, यस with the experience we have developed lot of things. So this is, जो थैंक यू लोग सो मच रहेंगे ना सर. उनको बहुत मजा आएगा, ये जो सेशन, ये आज हम ये क्वेश्चनियर सॉल्व किया ना, तो इसी इसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। तो ऐसे अलग अलग आएगा, ये अभी तो मैंने आपका पर्सनालिटी के लिए दिया। अब एक बहुत ज्यादा इग्नोर्ड पार्ट होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बहुत कॉमनली आता है, ओके, बहुत बहुत कॉमनली, इतना कॉमन कि आप सोच नहीं पाओगे। आप में से 80% फीमेल्स ने को वो सिम्टम्स आके गए पोस्टपार्टम डिप्रेशन को, उनको पता ही नहीं कि ये मेरे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स है। 1 2 मिनट की वीडियो में क्लियर कर देता हूँ उसको कि क्या सिम्टम्स है, ओके। और उसके आगे जाके उसको कैसे ट्रीट करना है, सेम क्वेश्चनियर, हम एक क्वेश्चनियर वहां पे बनाएंगे, और आई आई टेल यू कि हाउ टू डील विद द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन डील एंड आफ्टर व्हाट एक्सटेंट यू हैव टू रेफर, ओके। सो वहां पे भी बहुत सारा काउंसलिंग का आपका काम आता है, दिस इज द काउंसलिंग, ओके। ये जो क्वेश्चंस है 30 50 क्वेश्चंस है, दिस इज द पार्ट ऑफ काउंसलिंग, कि आपको यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, साइको एनालिसिस करेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू डील ना, कि हर एक पेशेंट को आप, सारे ही पेशेंट को आप सब लोग योगा करो, सब लोग म्यूजिक सुनो, सब लोग पेंटिंग करो, ऐसे बोलोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इसलिए ये स्लाइड देखा ना आपने, दिस स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि हर एक का अलग अलग है आउटपुट, दिख रहा है ना ये स्लाइड में, और ये आउटपुट एक क्वेश्चन से आता है, और ये क्वेश्चन से हम ये आउटपुट निकाल के अगर हम उनको प्लान देते हैं गर्भ संस्कार का, देन दैट इज गोइंग टू क्रिएट इम्पैक्टफुल गर्भ संस्कार। अंडरस्टूड? सर नमस्ते. जी नमस्ते. सर आत्ताच्या सेशनला थोडं पैसे भरू शकत नाही, एक्झाम पण आहे आमच्या की फायनल इयर फर्स्ट टर्मच्या. तर मग नंतर कधी सेशन अरेंज झालं तर मग तर होऊ शकते, अरेंज मोस्टली करणार हाँ आहे का? सेशन मैं अभी सभी को बता देता हूँ, मोस्टली मेरा वाला ये जो गर्भ संस्कार का मैं सेशन लूंगा वो अगले साल होगा। अभी इस बार होगा तो इसके बाद डायरेक्ट अगले साल होगा।
अगर आपका सेशन मिस होता है देन यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड, ओके, रिकॉर्डिंग्स हर दिन अवेले अपलोड की जाएगी और आप उसको डायरेक्टली देख ले, आपके जब आपको टाइम मिलेगा तब देख ले, ओके। और एक आध डेढ़ घंटे का ही सेशन रहेगा। अगर आप टाइमचा विषय नाही सर, पैशांचा विषय आहे सर. पैसे पुढच्या वर्षी, आता जरा पैसे जमणार नाहीत 1-2 महिने म्हणून म्हणलं, हाँ हाँ हाँ, असा नहीं विषय आहे. आप क्या कीजिए ना, आपके जो टेक्निकल डाउट्स है ना वो आप जो टीम मेंबर्स है डॉक्टर ललित और डॉक्टर मंजुषा उनसे बात कीजिए, वो जी जी डेल गाइड यू बिल्कुल. प्रॉपरली कैसे होगा। लेकिन ये मेरा सेशन, क्योंकि इसके बाद है ना आई एम एक्चुअली टोटली पैक्ड कि ये यही सेशन प्लान 2.5 साल से डॉक्टर मंजुषा और डॉक्टर ललित 2.5 साल से मेरे पीछे पड़े हैं कि सर ये लेना है, तब जाके आज हुआ ये। जी सर, जी सर. म्हणजे तुम्ही कम्युनिटी बिल्ड करणार आहे म्हणून मला ते पटलं कम्युनिटीचं बोलणं, म्हणून म्हणलं विचारायचं डायरेक्ट. हाँ नहीं, हम वो इसलिए करेंगे कि देन ओनली यू विल बी एबल टू हेल्प ईच अदर। तो हम सिर्फ हम्म. पढ़ेंगे और छोड़ देंगे ऐसा नहीं होगा। जो भी पढ़ेंगे बरोबर आहे. उसको हम इसी 30 दिनों में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, ओके। दैट्स वाई मैंने आज का भी सेशन, इसलिए आज मैंने स्लाइड आज एक दिन में पूरे चेंज किए, क्योंकि बहुत से लोग जो नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू दे एबल टू गो फॉर द, और जो भी हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे वो भी ये स्लाइड्स को लेके अगर कहीं सेशन लेते हैं देन दे विल फील दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ आई एम एबल टू डू, ओके। और उसमें आपके जी एक सर. दो पेशेंट आ जाता है तो आपके कोर्स के पैसे निकल जाते हैं। दो पेशेंट्स आपके कोर्स का पूरा फीस निकाल के देंगे। तर नाही, मी फायनल इयरला आहे, अजून सुरुवात व्हायचंय सर. हम्म। नहीं नहीं, आई हम्म. एम स्पीकिंग अबाउट जनरल, ओके, नॉट जस्ट अबाउट यू, ओके, मतलब सभी के लिए बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच सर. ओके, थैंक यू एवरीवन। किसी को और कुछ सवाल है तो अनम्यूट करके पूछे या चैट बॉक्स में पूछे, सर कैन यू शो द क्वेश्चंस वंस अगेन। We will upload this recording in the on the मैंने YouTube channel इसलिए बोला also. कि So फटाफट tomorrow आप, they will get. हाँ इसका ये Tomorrow they will रिकॉर्ड, get the uploaded lecture. Okay, on ओके the YouTube ओके, channel. We'll share the link यू यू कैन in the कॉन्टेक्ट group. डॉक्टर मंजूषा फॉर द लेक्चर, ओके। सो दीज आर द Yes, sir. क्वेश्चंस। आप फिर भी क्वेरी थी. ओके, हेलो सर, आई एम ऑडिबल? यस, सर एक क्वेरी थी. एक्चुअली 2 साल से मैं खुद भी एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर काम कर रही हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. मेरे पास यहाँ डिपार्टमेंट है प्रॉपर गर्भ संस्कार के लिए, जहाँ हम लोग पूरी तरह से एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रूम टॉक, लाइव संगीत लाइक म्यूजिक अकॉर्डिंग टू रागा, मंत्रास एंड आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड वैदिक कर्म, मतलब पंडित जी से आके करवाते हैं सब लोग. प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि मार्केटिंग एंड अगर गायनेक से टाइप नहीं है तो पेशेंट रिवर्ट ही नहीं हो रहे हमारे पास. मतलब अच्छे जो आ रहे हैं वो कंटिन्यू पूरे 9 मंथ तक लाइक प्रॉपर कर रहे हैं, जिसमें हम सुतिका परिचर्या, नवजात शिशु परिचर्या भी दे रहे हैं प्रॉपर्टी. बट जो मार्केटिंग एक लैक मुझे लग रहा है, या एक फ्लो पेशेंट का कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो नहीं हो. तो उसके लिए थोड़ा एक काम करना है. अगर मैंने 30 डेज का मैंने ज्वाइन तो किया है, बट मुझे उसके लिए भी थोड़ा गाइडेंस लगेगा. यस मैडम, आप है ना जब हम एंड में आएंगे ना तो या बीच बीच में मैं कहीं कहीं बताऊंगा यूज दिस फॉर द मार्केटिंग, ओके। सो क्योंकि सो सोशल कैन, मीडिया हैंडलर भी हम लोगों ने हायर कर रखा है अभी एंड ऑल. आप जैसे बता रहे हो कि सही में एक्टिविटी की भी जरूरत है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी हम लोग लेते हैं, बट जो फ्लो आना चाहिए एक, वो नहीं आता है हमारे पास. क्योंकि जो ओनली प्रीनेटल योगा लेके रखे हैं उनके पास 25-30 पेशेंट है, और हम पूरे एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हैं, फिर भी वो फ्लो नहीं है. तो वो एक मुझे थोड़ा लैकिंग लगता है. उसके लिए कुछ पोजिशनिंग मैडम, पोजिशनिंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर इंदौर. इंदौर, इंदौर में तो आई थिंक यू हैव टू गेट द रिस्पॉन्स प्रॉपरली। समवेयर यू आर लैकिंग, वी विल फिगर आउट कि आप कहाँ पे लैक कर रहे मैंने हो, ओके। 2 से 2.5 साल पहले ऑफलाइन जब शुरू किया था, ऑलमोस्ट 4 साल से तो मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, बट 2.5 साल से कर रहे हैं तो अब भी 4 पेशेंट 5 पेशेंट यही मतलब रेशो है. जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 25-30 पेशेंट का, बट वो नहीं हो पा रहा है. तो मुझे बस वो एक लैकिंग है. तो आप अगर इन 30 दिनों में उस पर भी हमें गाइड करो तो आई यस गेस. मैडम, अराउंड 25th लेक्चर एक बार आप ग्रुप में हो क्या? हाँ सर, मेरा पेड हो ठीक है, गया है, मैंने ठीक सर है, को पे ठीक है। कर तो दिया. वहां पे हम बीच बीच में जब डिस्कस करेंगे ना
तो वहाँ पे तो मतलब हम हाइलाइट्स में जाएंगे ही। ओके, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि Yes. हाउ वी प्रिस्क्राइब द एक्सरसाइज फॉर सम ऑफ द Mhm. माइनर एलिमेंट्स। ओके, तो वो Mhm. वाली चीज है, तो वो वाली चीजों में मैं आपको बताऊंगा कि अगर Mhm. यहाँ पे ये पॉइंट है जिसको आप जब पेशेंट पे कराओगे तो इसको आप ये कर दो, उस हिसाब से करेंगे। और मार्केटिंग के ऊपर हम एक 29 सेशन में 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर डिस्कस करने ही वाले हैं। ओके, सो जस्ट रिमाइंड मी योर प्रॉब्लम्स around Yes. 25th lecture, so I'll specifically go to for your problems as well. Okay, how Yes. you can go ahead or how you can market the thing. Okay. क्योंकि आगे से मेरा 4th क्लास होगा। मैंने एनआई जयपुर से भी कर रखा है, देन करिश्मा मैम नरवानी जामनगर एंड मनस्वी फाउंडेशन मोहिनी मैम। तो प्रॉब्लम बस मार्केटिंग की आ रही है कि वो नहीं हो पा रहा है, वो कंटिन्यू फ्लो नहीं हो पा रहा है पेशेंट को। आप कॉलेज कॉलेज में अटैच है, कॉलेज से कराती है या खुद का कराती है? नहीं सर, मेरे पास डिपार्टमेंट है आरएसएस का, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है माधव सृष्टि वहाँ, एंड एक गौशाला है वहाँ हम लोग कराते हैं। मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल से अटैच हूँ दोनों तीनों जगह। ओके मैम, मैम हम क्या करेंगे, आपके आई 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 स्पेसिफिकली डॉक्टर ईश्वर, प्लीज कांटेक्ट डॉक्टर मंजुषा सर, कैन द क्लासेस विल बी इन इंग्लिश? ओके, PPTs are mostly in the English, 95%, 98% PPTs are in English. Okay, just the flow will of the class will be hybrid, English plus Hindi. Okay, so डॉक्टर राधिका, व्हाट विल डू इज आप अपना डिटेल्स भी शेयर करके रखिएगा। ओके, वी Yes, sir. विल ट्राई टू टेक दिस एज अ केस स्टडी एज वेल। ओके, सो दैट विल बी गुड, यू Thank you आर so much, ऑलरेडी अ sir. ग्रुप मेंबर। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, हम जब एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे और ब्लूप्रिंट बनाते बनाते हम एक ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बाकी के लोगों से क्लास करवाएंगे। ओके, Mhm. सो दैट विल बी गुड। तो वहां पे हम एक एज अ जस्ट लाइक अ केस स्टडी हम देखेंगे कि व्हाट वी कैन, how we can proceed ahead. Okay, and हम you are already doing it a good, that is very good, but I would like to tell you कि हमारा विजन यही था, and one of the candidate, you are one of the perfect candidates, कि जो मेरा विजन है इसके बाद हम जो ऑफलाइन करेंगे या कम्युनिटी बनाएंगे, वहां पे ऐसे लोग हो जो एक्टिव हो और जो इन्वॉल्व रहेंगे इस सीरीज में। तो हम फर्स्ट हमारा सीरीज तो यहीं पे करवाएंगे, कोल्हापुर, Yes. इचलकरंजी या पुणे में। ओके, ऑफलाइन। Yes. लेकिन नेक्स्ट टाइम Actually, ऑनवर्ड्स जो हम ऑफलाइन सीरीज कराएंगे अलग अलग जगह पे, देन यू आर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट वेयर वी कैन। सर इंदौर हमेशा, और मैं हमेशा आपके लिए हूँ। नहीं, डेफिनेटली करेंगे मैडम, डेफिनेटली करेंगे, और जो नाम आपने लिए हर जगह पे मैं भी जाके आया हूँ। हाँ सर, क्योंकि मैं भी टीम की ही तलाश में थी, लाइक मैम के साथ और योगेश सर के साथ भी जुड़े हुए हैं, बट वो हम्म, वर्कआउट वैसे प्रॉपरली एक अच्छे से होना चाहिए। मैं इसके लिए भी ढूंढ रही थी कुछ कि हम्म, जरूरी, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो इतने एंथो से और आपको वो पेशेंट नहीं मिलते, तब थोड़ा सा डिसमूड हो जाता है एंड डिस्करेज आ जाता है। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट ऑन दिस मैम। ओके, एंड डेफिनेटली आपको इस पे आउटपुट आएगा, लाएंगे आउटपुट हम। थैंक यू सो मच। Hello, sir. यस, या डॉक्टर श्वेता। Yes, I have a query, sir. I want to attend this 30 days master class, but I'm going out of town in few days, so I won't be able to attend class or recordings for 3 days consecutive. So, and you have daily activities and tasks. So, how it will be managed? आपको आने के बाद क्या करना होगा, जो भी कवर हुआ है ना, या हाँ. तो आप जहाँ पे रहेंगे व्हाट्सएप पे टास्क आएगा, आप टास्क कंप्लीट करके रखिए सिर्फ, क्योंकि टास्क इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेशन दैट इज गोइंग ऑन। सेशंस को हमने ओके। कंटिन्यूशन में रखा है, क्योंकि हम बीज शुद्धि करवाएंगे, प्रिकंसेप्शनल मॉडर्न का बताएंगे, फिर आयुर्वेदा का बताएंगे, बीज संस्कार, फिर हम बीज शुद्धि का प्रोटोकॉल करेंगे, फिर प्रेगनेंसी में जाएंगे, फिर मंथ वाइज डेवलपमेंट में जाएंगे, राइट? सो दैट इज अ Yes. कंटिन्यूएशन। ओके, Yes. ऑन द अदर हैंड मैंने उसको ये किया है कि डेली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टास्क। वहां पे मैंने असाइनमेंट जो भी लिखे हैं, मैंने तो वहां पे सिंगल सिंगल नाम लिखे हैं। ओके, सो टुडे हाँ. ऑल्सो आई हैव फिगर्ड आउट सम ऑफ द थिंग्स, ओके, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जो आप Okay. मतलब इस सीरीज में मैं करवाना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मैं करवाने की सोचा मैंने। सो इन दैट वे व्हाट वी कैन डू इज वी विल जस्ट कंटिन्यू द टास्क, और 3 days का टास्क तो बहुत कुछ ऐसा रहेगा भी नहीं। ओके,
तो यू विल बी इजीली डुएबल। ये तो मतलब ऐसे एग्जाम तो मैं जैसा बाद नहीं। में आने के बाद उसे कवर कर सकती हूँ हाँ, टास्क को। आराम से कवर कर सकते हैं, आराम से कर सकते। ओके बेसिकली ओके मेरा थॉट यहाँ पे ये भी रहेगा कि मैंने ऐसे मेरा और एक भी थॉट है कि जो भी हमारी कम्युनिटी है, ओके, तो ये भी जो मतलब ये जो जो भी मेंबर्स है, इन मेंबर्स को हम ये कराएंगे, ब्रेकआउट रूम्स बनाएंगे। ओके, तो ब्रेकआउट रूम्स फिक्स रहेंगे। तो वो ब्रेकआउट रूम, जो भी आप ब्रेकआउट रूम में जाओगे आप आने के बाद, वो हाँ ब्रेकआउट रूम के मेंबर से आप बात कर लेना। ओके, कि उसमें से किसी ओके को पकड़ लेना और उसके साथ कंटिन्यू टच में रह जाना। वैसे तो आपको ग्रुप में आते ही रहेंगे सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ओके सर ठीक यस है। यस थैंक यू सर। और किसी को कुछ सवाल है? अदरवाइज विल वाइंड अप एंड वी विल मीट। सर, बीज शुद्धि में पंचकर्मा लाइक कर्म, उसका भी कुछ रहेगा क्या सर? डेफिनेटली रहेगा डॉक्टर शैला जी। बीजों को शुद्धि में हम पंचकर्मा कंसेप्ट्स भी देखेंगे और पंचकर्मा के प्रोटोकॉल्स भी देखेंगे। पेशेंट को चार्जेस कितने बताने हैं, कैसे डिसाइड करें सर? दैट डिपेंड्स ऑन द टोटली ऑन द पैकेज यू डिजाइन। ओके, आप जो भी आप अपना टाइम, हियर द वैल्यू इज ऑफ योर टाइम। ओके, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, उसका वैल्यू होता है। सो आप उसका वैल्यू, आपका खुद का वैल्यू आप खुद डिसाइड करोगे, वो हम आपको करवाएंगे आपकी खुद की कीमत की वैल्यू। तो इन दैट वे यू विल प्लान योर ओन चार्जेस। ओके, थैंक्स योर फॉर द गाइडेंस। ओके, टाइम ऑफ सेशंस विल बी अराउंड 7:30। ऐसे ही हो गए, 1.5-2 घंटे से हो गए। डॉक्टर ईश्वर दत्त शर्मा रेज्ड हैंड, अभी तो इसको कहाँ देखना है? सर अनम्यूट करके बोलिए, डॉक्टर ईश्वर दत्त शर्मा जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। या बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा बोल रही हूँ। जी बोलिए मैडम। सर मैंने भी एक ना करिश्मा नारायणी मैडम और एनआईए से किया था, मगर सर हम्म उसमें वो म्यूजिक थेरेपी वो जो करवाते हैं वो पेशेंट फॉलो ही नहीं करना चाहता कुछ तो। मैडम, हाँ इसका जवाब है ना, ऑलरेडी आपने आज सीखा है। हाँ जी। क्या सीखा है आपने, मैं सर बताता हूँ आपने। हमने जो लेट ज्वाइन एनालिसिस किया किया था ना, सर। एनालिसिस, तो हाँ जी। एनालिसिस में है ना, अभी ये स्लाइड देखिए। अभी इसमें से है ना, वो अगर इस कौन सी कैटेगरी में आता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो, मैंने बोला ना, आप हर पेशेंट को म्यूजिक अगर कंपलसरी करवाएंगे, दे विल नॉट फॉलो बिकॉज ऑफ देयर नेचर। ओके, उनका नेचर या उनकी जो पर्सनालिटी है, वो आपने एसेस नहीं किए ना। तो हर एक पेशेंट म्यूजिक थेरेपी नहीं फॉलो करेगा। अब तक क्या सीखा है हमने? गर्भ संस्कार में जो भी सीखते हैं वो एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन, इजंट इट? Yes, sir. So it is not in that way. We have to design it, customize. Everything is there, but it will be in customized way. हाँ, ये सारी Customized. चीजें आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको ये ज्यादा सूट करने वाला है या आपको ये ज्यादा फायदे देने वाला है जो आपने हमें एनालिसिस में दिया है। आपका स्कोरिंग इसके हिसाब से आपका पर्सनालिटी टाइप ये जाता है। तो सो यू हैव टू डू दिस थिंग्स, देन यू विल गेट द आउटपुट, अच्छा आउटपुट मिलेगा। ओके सर थैंक। I am just BMS MS OBGY pass out. Is this time will be suitable for me to learn Garbha Sanskar? It's needed to have an experience practice before. Not at all. Zoom user ऐसे This नाम is a आया है। perfect time. या आप experience, you will gain the experience over these 30 days. You will gain the good experience over these 30 days. Once again, I like to welcome everyone to this beautiful journey of 30 days in Garbha Sanskar online training program. And many delegates have this query of recordings or missing the live session. So obviously, we encourage everyone to stay in pace with us and attend the live sessions regularly. However, if you miss any of the class due to some unavoidable reasons, might be your OPD times are not matching or you are out of station, don't worry. The session recordings will be available soon, next day itself, and we have also kept a catch up holidays in the schedule. So Saturday, Sunday, it will be a holiday. So you can complete
this missed sessions comfortably during those days. Most importantly is that you are not alone in this journey. Our team will be always there to guide you, to support you throughout the course. And if you have any doubts or need any help in catching up with the syllabus, we are always there to assist you. We won't be leaving any one of you behind. So we will move forward together as one learning family, as one learning community. That is what we are expecting from this training program. I thank you everyone for attending today's session. Recording will be available soon for today's session also. We'll share the YouTube lecture link tomorrow in the group itself. And those who are willing to join, I have already shared my number in the chat box. Please note my number and message me. I'll explain you the registration process. Okay. Thank you, sir. Anyone is left with any doubts? Shall we end the meeting? Thank you, ma'am. I'd like to conclude the session with any one of you. Please unmute yourself and please let me know how was today's day, how you felt. Is anyone willing to give feedback? Not in the chat box. Just unmute yourself and please let us know. In the WhatsApp group, the messages are there. In the chat box also messages are there. But if someone can unmute and please let us know how was the session. Dr. Kalauti Nandaram, ma'am. Are you comfortable speaking? Or else those who ask the question can also unmute and tell. Yes, yes, yes. If you want to practice Garbha Samskar, you have to be very much interactive. बोल बच्चन बनना पड़ेगा. Oh, that is one of the journey during this course. What are the qualities when we are expecting to become the trainer of the गर्भ संस्कार? तो वो भी हम देखेंगे 2-3 दिन में. फर्स्ट 2-3 days में ही हम देखने वाले हैं कि what qualities are expected to you to become a गर्भ संस्कार consultant या गर्भ संस्कार coach or trainer. So that also will go through. Okay, so anyone else want to unmute and tell? They can share just their thoughts. बहुत से लोगों ने डाउट्स पूछे. डॉक्टर अजय, डॉक्टर जूम करके कोई था, बहुत से लोग थे. So someone can unmute and tell how was the experience? Sir, I can tell. Dr. Krishma Zaveri. Yes, ma'am. Please. नमस्ते सर. नमस्ते. सर आज का स्लाइड वगैरह जब चल रहा था ना सर, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सर. आई कुड एक्चुअली इमेजिन कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि पहले किया हुआ है गर्भ संस्कार का ये कोर्स, पर सर कैसे स्टार्ट करना अभी तक किया ही नहीं. नॉर्मल मतलब जो डिलीवरीज वगैरह करते हैं वही करते हैं अभी तक, पर इस तरह अप्रोच ही नहीं किया. पर आप जब स्लाइड्स दिखा रहे थे तो समझ में आ रहा था कि कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे पेशेंट ले सकते हैं. तो सर थोड़ा विश्वास बैठ रहा है सर. Yes, ma'am. पे हम खुद कर सकते हैं ऐसा. Yes, yes. Thank you very much. That was the motto कि आप ये आज का प्रेजेंटेशन देख के खुद का एक प्रेजेंटेशन बना सको. That was the motto. So thank you very much. हॅलो सर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गर्भसंस्कार आयुर्वेदातील आणि आपल्या संस्कृतीतील अत्यंत एक सुंदर आणि शास्त्रशुद्ध संकल्पना आहे. पण हे फक्त संहितेमध्ये अभ्यासातून किंवा लेक्चरमध्ये कॉलेजमध्येच आम्ही ऐकलेलं आहे. आणि मी तर पर्सनली याचा काही कुठला क्लास वगैरे केला नाही. पण मी इच्छुक होते बऱ्याच दिवसांपासून की एक चांगला आणि तोही आपल्या मातृभाषेतून एखादा जर क्लास करता आला तर खूपच उत्तम असणार आहे. कारण की मातृभाषेतून आपल्याला लवकर कॅप्चर करता येतं सर. तर आजचा क्लास झाल्यानंतर मला असं कळलं की म्हणजे आधी मला एक फिअर वाटायचा की मी कसं करणार. म्हणजे इच्छा तर आहे की गर्भसंस्कार चे क्लासेस घ्यायचे, त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिसमध्ये आपल्याला हे करायचं आहे, पण ते कसं करायचं, नेमकं काय करावं लागतं, पेशंट आल्यावरती त्याचं कसं काउन्सिलिंग करायचं. तर हे जे बेसिक कॉन्सेप्ट जे होते ते आता जेव्हा हे सेशन केलं, तुमचा हे जे क्लास केला त्याच्यानंतर एकदम क्लिअर झाला आणि आता तो कॉन्फिडन्स पण आला सर. तर खूपच छान आणि इन्फॉर्मेटिव्ह होतं.
आणि तुम्ही एकदम पॉझिटिव्ह वेने आणि कामली हे सगळं सांगितलं. खरंच खूप खूप धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच मैडम. तो आने वाले 30 दिनों में वो मतलब 30 लेक्चर्स है, लेकिन करीब 1.5 महीना चलेगा ये सीरीज. तो बहुत सारा फन, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे. ऐसे ही हम जुड़ते रहेंगे. ओके. तो ये कंटिन्यू रहेगा डिस्कशन, और आज जितना मजा आया उससे बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो ये भी केयर किया है कि ये मोनोटोनस नहीं होना चाहिए या बोरिंग नहीं होना चाहिए, या पूरा थेरोटिकल नहीं लगना चाहिए, आपको प्रैक्टिकली भी करते आना चाहिए. सो इस हिसाब से ही जाएंगे. और किसी को कुछ Yes. डिस्कस करना है? Yes, Dr. Priyanka ma'am, she wants to say something. प्लीज मैम. यस. हेलो, यस मैं मैम. प्रियंका प्रधान, Yes. ITR जामनगर में मैं फाइनल ईयर PG स्टूडेंट हूँ गायनेक में. ओके. और हमारे इधर भी हम गर्भ संस्कार का लेते हैं पेशेंट्स के लिए. लेकिन वही एक प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर हम प्रैक्टिस में उतरेंगे, हमें खुद का सेटअप डालना है, तो हम किस वे से हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो आज का जो ये डेमो वाला क्लास था उसमें मतलब एक आइडिया आ गई कि हम अच्छे से कर पाएंगे आगे जाके. तो अच्छा लगा आपका वे और वो सब. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ग्रेट सेशंस. थैंक यू सर. थैंक यू. टीचर्स को बोलिएगा कल कि आज हमने सेशन किया भूषण सर का. हाँ यस सर, बिल्कुल. सारे आपके टीचर्स हैं पहचान के? जी, सिपिका मैम नहीं हमें का ज्वाइन करने के लिए. अच्छा, ऐसे. सिपिका वाला. हाँ, ओके हाँ. ओके. सिपिका मैडम, शिल्पा मैडम, हर कोई मतलब सभी ही पहचानते. हाँ सर. Thank you, ठीक है. sir. Thank you for this wonderful session. You were speaking something, sir? नो नो, ठीक है. सो विल वाइंड अप मैम. यू कैन कंक्लूड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, everyone. Good night, delegates.